keeping in that in सभी view, को नमस्कार। we will discuss about how to write a good research proposal, right? So let us start the first lecture, that is changing research scenario and opportunities for funding, right? Am I audible to everyone? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. You are all from different Yes, disciplines, sir. coach? You are all Yes, from sir. different disciplines? Yes, yes. Yes. Okay. Some are from natural science, some are from medical science, maybe some are from humanities and arts, some are from social science, like this. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. So, Yes, sir. yeah, so I would suggest you to mute yourself, but unmute your video, right? You unmute some of you may unmute your video so that we'll have a lively interaction, right? Uh, if you look at the research scenario, both within the country and outside the country, you will find five changing trends or five recent trends that define the research scenario or the changing research scenario in the country and outside the country, right? The no, so it is applicable to India, it is applicable to Europe, it is applicable to all over the world, and most of the funding councils, including the government, they are funding as per these recent trends, right? The first recent change, the first change you can say is the change from or the shift from multidisciplinary research to transdisciplinary research, right? This is the first major change, multidisciplinary research to transdisciplinary research. Almost all funding councils, governments, all countries, continents, you will find that there is a shift in the research scenario, and the earlier focus was on multidisciplinary research. Nowadays we are shifting to transdisciplinary research. Can anybody say what is multidisciplinary research and what is transdisciplinary research? Any idea what is multidisciplinary? No, sir. Okay, anybody else? We have some 216 participants. So anybody who can shed some light on what is multidisciplinary research and what is transdisciplinary research? Trans means translational research. बताइए. Translational research, perhaps. Transnational नहीं, transnational नहीं, transdisciplinary. I'm asking about Sir, disciplinary research. सर ट्रांसडिसिप्लिनरी का मतलब होता है जो सब विषय से परे हो, जैसे भगवत गीता, जिसमें सभी विषयों का इतना समारोह से हो कि मतलब उसको पहचानना मुश्किल हो. नहीं, ऐसा नहीं है, उसमें उसको Translational research is if I have developed a questionnaire and pretest it and go to the field work and generate data, and after that we analyze something through the data, then it is called translational research. नहीं है. Connecting more than one branches. वो तो इंटरडिसिप्लिनरी भी हो सकता है, मल्टीडिसिप्लिनरी भी हो सकता है. Sir, when we use the approaches of more than two disciplines in any research, it can be considered as multidisciplinary research. And transdisciplinary is, I think, if we go beyond the limitation of our own subject, then it can be considered as transdisciplinary. Sir. चलिए, पार्शियली ट्रू है, 100% नहीं है. तो और कोई? एनीवे मैं बता देता हूँ. देखिए, चार टर्म है. एक है डिसिप्लिनरी, एक है इंटरडिसिप्लिनरी, एक है मल्टीडिसिप्लिनरी, एक है ट्रांसडिसिप्लिनरी. ठीक है. When you focus in your own discipline and you don't bother what is happening in other disciplines, that is called disciplinary research. अगर आप फिजिक्स में हो, आप सिर्फ फिजिक्स के बारे में सोचते हो, दूसरे सब्जेक्ट वाले, केमिस्ट्री वाले, मैथ वाले क्या करते हैं, आप उसको बदर नहीं करते हो, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड डिसिप्लिनरी रिसर्च. When you are influenced and you influence the other discipline, more than one discipline, that is called interdisciplinary. मिनिमम 2 सब्जेक्ट जब होते हैं तो उसको इंटरडिसिप्लिनरी कहते हैं. फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ठीक है, हिंदी लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर. So when there are two, when there are research interaction between two different disciplines, that is called interdisciplinary research. Multi means more than two. 2 से ज्यादा सब्जेक्ट होते हैं. So multi means more than 2. फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ठीक है, हिंदी लिटरेचर, तेलुगु लिटरेचर, उर्दू लिटरेचर. So when there are more than 2 subjects involved, so that is called
मल्टी मीन्स मोर देन टू, बस इतना ध्यान रखना। इंटर मीन्स मोर देन वन, मल्टी मीन्स मोर देन टू, डिसिप्लिनरी मीन्स एक ही सब्जेक्ट है, ट्रांसडिसिप्लिनरी रिसर्च इज डिफरेंट फ्रॉम मल्टीडिसिप्लिनरी एंड इन टू वेज। कैसे डिफरेंट है? व्हेन वी से transdisciplinary research, first of all it doesn't recognize the artificial boundaries of any discipline। ये हिस्ट्री है, ये पॉलिटिकल साइंस है, ये मेडिकल साइंस है, ये नेचुरल, वो सब बाउंड्री जो हमने अपनी कन्वीनियंट के लिए बना के रखे हैं। सो ट्रांसडिसिप्लिनरी रिसर्च डजंट रिकॉग्नाइज the artificial boundaries between different disciplines, so you go beyond the discipline, you go beyond the boundary, ठीक है? And the purpose is unity of knowledge, because your purpose is to create knowledge, to produce knowledge. So you don't, and you realize that real knowledge, comprehensive knowledge, or true knowledge is not possible if you divide the disciplines into different categories, right? So transdisciplinary research focuses on unity of knowledge, comprehensive knowledge, totality of knowledge, right? And doesn't accept the artificial boundaries of any discipline, right? It accepts that medical science can influence social science can influence medical science, natural science can influence social science can influence arts and humanities. So if you really go to the depth of the subject, you will find that all the artificial boundaries are irrelevant. They are all meaningless because each discipline influences the other discipline, right? It is just a matter of convenience that you divided the disciplines into different artificial boundaries. But if you really go to the depth of the matter, depth of the issue, then you will find all disciplines are influencing each other. So the first feature of transdisciplinary research is unity of knowledge, comprehensive knowledge, or totality of knowledge. ठीक है, समझ में आ रहा है? सर जो प्लेटो ने लिखी रिपब्लिक वगैरह जो इस तरह से, तो उसको हम कह सकते हैं ट्रांसडिसिप्लिनरी? नहीं, प्लेटो को नहीं, अरिस्टोटल को कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने बायोलॉजी का ही, अरिस्टोटल वाज ए ट्रेन्ड बायोलॉजिस्ट, बट ही कंबाइंड द बेस्ट एलिमेंट्स ऑफ नेचुरल साइंस विद सोशल साइंस। जब उन्होंने पॉलिटी वगैरह लिखा, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के क्लासिफिकेशन किया, गवर्नमेंट का क्लासिफिकेशन, सो रियल, इन रियल सेंस, if you want to know, it was Aristotle who was transdisciplinary, who advocated or who used the transdisciplinary research method. Okay, sir. Right? Because Plato was not a science, trained scientist. He was a political scientist, but Aristotle was a trained biologist. Right? So from biology he came to political science, focused on all these aspects: economics, history, political science, comparative constitution. So everything he combined. So in the real sense, if you want to make a start with transdisciplinary approach, so it was Aristotle, and that's why we call him the father of political science. Anyway, so this is the first feature, that transdisciplinary research focuses on unity of knowledge. ठीक है, ट्रांसडिसिप्लिनरी रिसर्च जो है यूनिटी ऑफ नॉलेज, पर नॉलेज प्रोडक्शन के ऊपर फोकस, उसके लिए नॉलेज ही इंपॉर्टेंट है, बाकी सब ये सब आर्टिफिशियल बाउंड्री, दे डोंट रिकॉग्नाइज दैट. द सेकंड मेजर फीचर ऑफ ट्रांसडिसिप्लिनरी रिसर्च इज दैट you can borrow theories, concepts, methods, and policy issues from different disciplines. So each discipline influence the other, right? So there is a research give and take. There is a research give and take. जो natural science में हो रहा है वो social science को influence कर सकता है, जो social science में हो रहा है वो natural science को influence कर सकता है. जैसे मैं एग्जाम्पल अगर आपको दूं, जैसे कोविड है, कोविड जो है बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसडिसिप्लिनरी रिसर्च. देखिए, कोविड में मेडिकल साइंस इन्वॉल्व है, कोविड में सोशल साइंस इन्वॉल्व है, कोविड में नेचुरल साइंस इन्वॉल्व है, कोविड में आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज भी इन्वॉल्व है. आप पूछे कैसे? जैसे मेडिकल साइंस के हिसाब से अगर हम कोविड को देखते हैं, जैसे वायरस, कंटाजियस नेचर ऑफ द वायरस, म्यूटेशन ऑफ वायरस, ठीक है, वैक्सीन, ये सब चीज साइंस का है ना? नहीं. अगर हम इकोनॉमिक्स में आ जाते हैं, जैसे लॉकडाउन, जीडीपी डिक्लाइन, राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी, ये सब चीज किसकी है? इकोनॉमिक्स की है. तो कोविड की वजह से जो लॉकडाउन हुआ, जिसकी वजह से सारे कंट्री इकोनॉमिकली बर्बाद हो गए, तो वो सब चीजों को स्टडी करने के लिए आपको इकोनॉमिक्स की जरूरत पड़ेगी ना? नहीं. वैक्सीन को कैसे चीप बनाया जाए, अफोर्डेबल बनाया जाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट करे, ये सब इकोनॉमिक्स इश्यूज है ना? नहीं. अरे अगर 1 लाख होता, एक कोविड का वैक्सीन अगर 1 लाख होता, कितने लोग इंडिया में 1 लाख दे के ले सकते थे वैक्सीन? You got my point. So you have to make it cheap and affordable so that everybody can
गेट द बेनिफिट। सो इसीलिए ये सब इशू जो इकोनॉमिक्स पॉलिटिक्स है, कोविड को लेकर बहुत सारे प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर का सरकार गिर चुका है। डोनाल्ड ट्रम्प जो है, डोनाल्ड ट्रम्प का अप्रोच आप देखोगे कोविड के टाइम कैसा रहा, एंड ही वाज रिप्लेस्ड बाय बाइडेन, राइट, बिकॉज ऑफ हिज पुअर रिस्पॉन्स टू कोविड। उन्होंने कभी कहा फिनाइल पी लो, कभी ये कर लिया, मतलब आज ए प्रेसिडेंट वो इस टाइम इस तरह बिहेव किए, लोगों को लगा ही हैज गॉन मैड। ठीक है, कई सारे गवर्नमेंट गिर चुके हैं, जैसे ब्राजील वगैरह देखोगे गवर्नमेंट, बोल्सोनारो का गवर्नमेंट गिरा है, बहुत सारे गवर्नमेंट जो है अपोजिशन वालों ने बहुत डंडा दिया सरकार को, भाई आप प्रॉपर रिस्पॉन्स। तो पॉलिटिकल इशू है। वैक्सीन का किसको आप वैक्सीन, आप अफगानिस्तान को वैक्सीन दे रहे हो, आप बांग्लादेश को दे रहे हो, आप श्रीलंका को दे रहे हो, आप मालदीव को दे रहे हो, पाकिस्तान को नहीं दे रहे हो। सो देयर इज ए पॉलिटिक्स, देयर इज ए पॉलिटिक्स ऑफ ओरिजिन ऑफ वायरस। कोई कह रहा है शंघाई में हुआ है, कोई कह रहा है वुहान में हुआ है, कोई कह रहा है चाइना वालों ने उसको लैब में डेवलप किया है। तो अलग अलग थियोरीज है। चाइना वाले कह रहे हैं अमेरिका वालों ने जानबूझ के चाइना में क्रिएट किया है। सो देयर आर लॉट्स ऑफ थियोरीज एंड देयर वाज अ लॉट ऑफ पॉलिटिक्स ओवर कोविड। ठीक है, वैक्सीन कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, किसको देना है, किसको नहीं देना है, कितने जल्दी डेवलप करना है, कितने जल्दी रेवेन्यू कमाना है। ठीक है, ओरिजिन ऑफ द वायरस, स्प्रेड ऑफ द वायरस, हर चीज में पॉलिटिक्स था। ठीक है, सोशियोलॉजिकली देखोगे सोशल डिस्टेंसिंग, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, रोल ऑफ रिलीजन एंड कल्चर इन द स्प्रेड ऑफ कोविड, ये सब सोशियोलॉजी ऑफ कोविड है ना। नहीं, साइकोलॉजिकली देखोगे लोनलीनेस, डेथ इन द फैमिली, मेंटल ट्रॉमा, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, मेंटल डिसऑर्डर, ये सब साइकोलॉजी ऑफ कोविड है। नेचुरल साइंस में देखोगे केमिस्ट्री फिजिक्स का क्या रोल रहा है वैक्सीन का डेवलपमेंट में, राइट। सो they had played a very important role in the production of vaccine in such a limited time, और इसीलिए नोबेल प्राइज एक बार जो मेडिसिन है वो कोविड का वैक्सीन डेवलपमेंट के लिए मिला हुआ है। ठीक है, सो दीज आर नेचुरल साइंस इश्यूज। ठीक है, तो आप जो है अगर आप देखोगे हिस्ट्री, you can't understand the origin of COVID as a pandemic without focusing on the Spanish flu of 1918 that infected 500 million people and killed 50 million. ठीक है, तो आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे जब तक आप हिस्टोरिकली नहीं देखोगे। सो कोविड इज नॉट जस्ट ए disciplinary issue, interdisciplinary issue or multidisciplinary issue. It goes beyond those disciplinary boundaries and focuses on the best elements of theory, practice, policy issues, concepts, method, everything. So you can't understand COVID or you can do research on COVID just if you say that I don't know, okay, I'm from medical science, I'll study only the medical aspect. Your knowledge will be incomplete because medical aspect somehow reconnects with social science with other issues, right? So it is not a just medical issue, it's rather it's a social issue, it is an economic issue, it's a political issue, it's a psychological issue, it's a geographical issue. Everything is connected with COVID. तो आजकल हर फंडिंग काउंसिल, हर देश का सरकार इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च से हटके, मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च से हटके ट्रांसडिसिप्लिनरी रिसर्च की तरफ जा रहे हैं। और इसलिए जब भी आप कहीं रिसर्च के लिए अप्लाई करोगे तो आपकी अप्रोच ट्रांसडिसिप्लिनरी होना चाहिए। समझ में आ रहा है? जी सर। कुछ लोग अपनी शक्ल दिखा दो, ठीक है, कुछ लोग वीडियो को ऑन कर दो। Okay, so this is the first change. The second change is the shift from small data to big data. Small data to big data. ये एक दूसरा मेजर चेंज हो रहा है रिसर्च के एरिना में कि पहले जो है हम स्मॉल डेटा बेस्ड रिसर्च करते थे। वी यूज टू मूव फ्रॉम हाउस होल्ड टू हाउस होल्ड एंड कलेक्ट डेटा। तो हम घर घर जाके डेटा कलेक्ट करते थे, उनके बारे में पूछते थे, आपकी फैमिली में कितने लोग हैं, आपकी जात क्या है, आपको जॉब क्या है, आप पढ़े लिखे कितना हो, कितने बच्चे, वो सब घर घर जाके हम डेटा कलेक्ट करते थे। तो इसीलिए वो डेटा की बेसिस पे हम रिसर्च करते थे, ठीक है। और मैक्सिमम आप एक्सेल सी यूज कर लिया और मैक्सिमम आपने SPSS यूज कर लिया, वो डेटा एनालिसिस के लिए वो इनफ था, ठीक है। तो पहले हमारा जो रिसर्च हुआ करता था वो छोटे डेटा व स्मॉल डेटा की बेसिस पे होता था। अभी हम जो रिसर्च करने जा रहे हैं वी आर मूविंग फ्रॉम स्मॉल डेटा टू बिग डेटा। और ये बिग डेटा क्या है मैं अभी आपको जस्ट 1 मिनट में बता रहा हूँ। जैसे आप अपनी मोबाइल को ऑन करते हो, नेट से कनेक्ट करते हो, अभी सबके पास स्मार्टफोन है। जैसे ही आप नेट ऑन करते हो या जैसे ही अपनी लैपटॉप ऑन करते हो, आप नहीं जानते हो आप कितने गीगाबाइट्स एंड टेराबाइट्स ऑफ डेटा डेली मतलब जनरेट करते हो। समझ में आ रहा है? आप यूट्यूब देखते हो,
आप व्हाट्सएप यूज करते हो, गुड मॉर्निंग मैसेज करते हो, आप इंस्टाग्राम यूज करते हो, फेसबुक यूज करते हो, सोशल मीडिया तो करते हो, सरकारी मतलब ऑफिशियल काम के लिए ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, बैंकिंग करते हो, ओला उबर यूज करते हो। तो जितना सारे आप नेट में एक्टिविटीज करते हो, इंटरनेट बेस्ड एक्टिविटी करते हो, ऑनलाइन एक्टिविटी करते हो, उस एक्टिविटी के दौरान आप इतने सारे गीगाबाइट्स और टेराबाइट्स ऑफ डेटा यूज करते हो जो आप नहीं जानते हो आपने क्या किया, बट वो डेटा को सब बड़े बड़े कंपनी जो है कलेक्ट करते हैं, उसको डेटा कलेक्ट करते हैं, डेटा हार्वेस्टिंग करते हैं, डेटा माइनिंग करते हैं, डेटा को एनालाइज करते हैं, और आपके दो चीजों को अच्छे से स्टडी करते हैं। एक तो आपका बिहेवियर कैसा है और आपका माइंडसेट क्या है। ठीक है, आपकी माइंडसेट, आपका माइंड को स्टडी करते हैं और आपकी बिहेवियर को स्टडी करते हैं, और उसी हिसाब से सारे पॉलिसी, सारे प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करते हैं, या आपको स्टडी करके आपके बारे में उसी हिसाब से एडवर्टाइजमेंट आता है। आपने एक कोई कजारिया टाइल आप सर्च करोगे, फटाक से आ जाएगा कि आप जो है ये टाइल भी सर्च कर सकते हो। ठीक है, आप इंडिगो में सर्च करते हो, आपको एयर इंडिया का ऐड आता है कि आप ये एयर इंडिया में जाओगे तो आपको इतने प्राइस लगेगा। तो आप किसी होटल को सर्च करते हो, आपको नियर बाय होटल बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट आते हैं। आप स्विगी जोमेटो में करते हो, पता चलता है कौन ऑनलाइन खाना मंगा के खाता है, आपके घर कहाँ पे है। ठीक है, आप अलेक्सा सीरी यूज करते हो, आप कहते हो अलेक्सा सुबह मुझे जो है भगवत गीता का 2 श्लोक सुनाओ, तो अलेक्सा को पता चल गया कि आप हिंदू हो। आप कहते हो कुरान से सुनाओ, उसको पता चल गया आप मुसलमान हो। आपके घर कौन आता है मिलने के लिए, दाढ़ी वाला आता है, प्लेन से क्लीन सेवन आता है, उसको भी पता चल गया है उसका रिलीजन क्या है, उसके ड्रेस क्या, कोड ड्रेस वगैरह क्या पहना है। तो कोई भी एक्टिविटी आप करते हो, सारे एक्टिविटी से आप अपने बारे में जितना नहीं जानते हो, दूसरे आपके बारे में बहुत ज्यादा जानते हैं, क्योंकि वो सारे डेटा जो भी आप डेटा मतलब जैसे आप ऑनलाइन विजिट करते हो, यू जनरेट्स लॉट्स ऑफ गीगाबाइट्स एंड टेराबाइट्स ऑफ डेटा which are mined, which are harvested, and which are analyzed by the big multinational companies, including the governments, to know your mindset, to know your ideology, to know your voting behavior, to know your behavior as a buyer, to know your behavior as a consumer। ये सब चीजों को जानते हैं। तो आपका व्हाट्सएप मैसेज देख के, आपका फेसबुक मैसेज को स्टडी करके कोई बता सकता है कि आप कांग्रेस की सपोर्टर हो, बीजेपी की सपोर्टर हो, समाजवादी का हो, ममता बनर्जी का, तृणमूल कांग्रेस का हो। ऐसा ना, ये सब चीज आजकल आसान हो गया जानने के लिए कि आपकी आइडियोलॉजी क्या है, आप कौन सी गवर्नमेंट चाहते हो। इसी बेसिस पे डोनाल्ड ट्रंप और हिलारी क्लिंटन जब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन लड़ रहे थे, तो फेसबुक का डेटा का यूज करके, कैम्ब्रिज एनालिटिका करके एक ऑनलाइन मतलब आईटी कंपनी है, उसने it analyzed the Facebook data of several million American voters and it provided targeted advertisement to the Hillary Clinton supporters, as a result of which Donald Trump won the election and Hillary Clinton was defeated। ठीक है, तो ये सब चीजों को स्टडी करके, तो आज आप जैसे आप कहते हो, आपको जैसे दिवाली अभी आ रहा है, दशहरा आ रहा है, आपको कोई कह रहा है बिग बिलियन सेल हो रहा है, कोई कह रहा है दूसरा सेल हो रहा है, तो फिर क्रेडिट कार्ड में आपको डिस्काउंट देते हैं। तो आप समझते हो क्रेडिट कार्ड लेके आपने 10% डिस्काउंट ले लिया, खुश होते हो। आपने सारे क्रेडिट कार्ड का इंफॉर्मेशन आप ऑनलाइन शेयर करते हो, उनको पता चलता है कि आपके पास कौन सा क्रेडिट कार्ड है। आप क्रेडिट कार्ड में खरीद करना पसंद करते हो ना डेबिट कार्ड में करते हो। जिन बैंक का क्रेडिट कार्ड आप यूज नहीं करते हो, उनको जो पता चलता है वो उससे ज्यादा डिस्काउंट देते हैं। ठीक है, आप कहें एक्सिस बैंक का करोगे तो आपको 20% मिलेगा। फिर आप अगर एक्सिस बैंक आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो आप रिश्तेदारों को, फ्रेंड सर्कल में पूछते हो क्या तुम्हारे पास एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड है। ठीक है, तो ये सब चीजों के आप गूगल में सर्च करते हो, कोई भी चीज सर्च करते हो, गूगल को पता चलता है आपकी माइंड में क्या चल रहा है। आप कोई टेररिज्म के बारे में सर्च करते हो, उसके माइंड में पता चलता है आपको टेररिज्म के बारे में जानना है। आप क्लाइमेट चेंज के बारे में सर्च करते हो। सो एवरी एक्टिविटी, एवरी ऑनलाइन एक्टिविटी यू डू, you generate a lot of gigabytes and terabytes of data which are mined, which are harvested, which are analyzed by big companies, and the company generates a lot of information, lots of information about you as a buyer, as a consumer, as a citizen, everything they know about you। और उसी बेसिस पे वो आपको टारगेट करते हैं, चाहे एडवर्टाइजमेंट हो, चाहे आपका ऑनलाइन में मैसेज एक्टिविटी हो, चाहे आपका वोटिंग बिहेवियर हो, चाहे आपकी इकोनॉमिक, हर चीज को वो आपकी स्टडी करते हैं। उसी हिसाब से वो आपकी माइंड को इन्फ्लुएंस करते हैं। और कई बार आपकी माइंड इतना इन्फ्लुएंस हो जाता है
कि आपकी अपनी सोच खत्म हो जाता है, आप जो दूसरों का देखते हो उसी हिसाब से आप सोचते हो। ठीक है, टीवी में अगर 100 बार आ गया तो आप कहते हो अरे यही सही होगा, टीवी में इतने बार आ रहा है तो इसका मतलब सही तो होगा। यू गेट माई पॉइंट। तो आजकल हमारे जितने भी रिसर्च हो रहा है वो सब हम लोग शिफ्ट हो रहे हैं फ्रॉम स्मॉल डेटा टू बिग डेटा, बिकॉज बिग डेटा इज द फ्यूचर and the online activity, you will be surprised to know that about 70% of the people use smartphone and internet. So and more people will join in next 2-3 years। 100% लोग जो है स्मार्टफोन, आजकल देखोगे स्मार्टफोन हर किसी के पास है। बच्चे आजकल जो कोविड वगैरह वजह से जो ऑनलाइन क्लासेस वासेस हुआ था उसकी वजह से हर कोई स्मार्टफोन को जरूरत है। अगर काम वाली है तो उसके बच्चे के पास नहीं है तो वो पहले स्मार्टफोन खरीद कर भाई बच्चे को क्लास करना है। तो आजकल कोई भी ऐसा कोई आप देखोगे जो स्मार्टफोन से दूर है, अगर कोई होगा वो जरूर कोई साधु संत महात्मा होगा, नॉर्मल इंसान तो नहीं हो सकता। क्योंकि नॉर्मल इंसान तो सुबह उठ के रात को 2-2:30 बजे अगर नींद खुल जाते हैं, मोबाइल में आप व्हाट्सएप देखते हो, इंस्टाग्राम देखते हो, फेसबुक देखते हो, तो आप कहीं पे बाहर भी चले जाते हो अपनी अगर वॉलेट आप भूल जाते हो तो चलेगा, अगर मोबाइल फोन है तो आप उसमें से पेटीएम कर दोगे, गूगल पे कर दोगे, तो आपको बिना पर्स लेके भी आपका काम हो सकता है, बट बिना मोबाइल लेके आपके काम नहीं हो सकता। तो इसीलिए आने वाले समय में जो रिसर्च होने जा रहा है दैट इज गोइंग टू बी बेस्ड ऑन बिग डेटा बेसिस। और इसी वजह से क्योंकि डेटा अलग होगा, डेटा एनालिसिस का मेथड अलग होगा। तो पहले हम एसपीएस यूज करते थे, अभी हम जो है पाइथन यूज करने जा रहे हैं, पांडा यूज करने जा रहे हैं, आर लैंग्वेज यूज करने जा रहे हैं। सो डिफरेंट काइंड, वी आर टॉकिंग ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वी आर टॉकिंग ऑफ मशीन लर्निंग, वी आर टॉकिंग ऑफ डीप लर्निंग, वी आर टॉकिंग ऑफ बिग डेटा। तो आजकल ये सब चीजों जो है सुनने में आ रहा है। और बिग डेटा को लेकर एक अलग सा डेटा साइंस, एक अलग सा डिसिप्लिन आ रहा है जो डेटाबेस रिसर्च, डेटाबेस एनालिसिस और डेटाबेस एप्लीकेशंस के बारे में आपको बताने जा रहा है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, अर्लियर रिसर्च वाज डिफरेंट, this research is going to be different because earlier research was based on small data, this research is going to be based on big data। समझ में आ रहा है? Yes sir। Yes, sir. Okay। The third major shift is from teaching to teaching and research, right? The third major shift is from only teaching to teaching and research। पहले जब हम लोग जॉब करते थे, पहले हम लोग जब नौकरी करते थे तो हमसे कहा जाता था कि भाई आप अपनी 4 क्लास 5 क्लास पढ़ाइए और घर जाइए, ठीक है। अभी आपको कहा जाता है खाली पढ़ाओगे नहीं, आपको रिसर्च भी करना है। और आप अपनी इच्छा से, पहले जो लोग रिसर्च करते थे वो अपनी इच्छा से करते थे, अपनी लाइकिंग से करते थे, ठीक है भाई। उनको अच्छे यूनिवर्सिटी से कोई पढ़ता था तो वो अपने आप रिसर्च करता था, उसको कोई जरूरत नहीं था भाई ये है वो है। तो अभी जो है आप चाहो ना चाहो आपको रिसर्च करना है। इंडिविजुअली आपको दंडा दिया जाता है, इंस्टीट्यूशनली भी आपको दंडा दिया जाता है। इंडिविजुअली कैसे दिया जाता है कि आपको अगर आपका 300 पॉइंट एपीआई का स्कोर होगा तो आप एसोसिएट प्रोफेसर बनोगे, अगर 400 पॉइंट होगा तो आप एसोसिएट से प्रोफेसर बन सकते हो, ठीक है। तो इंस्टीट्यूशनली आपको ये आपका जो प्रमोशन है इंक्लूडिंग अपॉइंटमेंट हैज बीन मेड कंडीशनल, कि आपके पास अगर ये होगा तो आपको इंटरव्यू का कॉल लेटर मिलेगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर आप प्रमोशन पाना चाहते हो, सीनियर स्केल में जाना चाहते हो, एसोसिएट बनना चाहते हो, तो ये सब चीज़ों के लिए एपीआई आपको चाहिए, एपीआई का स्कोर चाहिए। कॉलेज में आप देखोगे कॉलेज का रैंकिंग हो रहा है, ठीक है। नैक वाले आ रहे हैं, नैक वाले जब कॉलेज आते हैं, कॉलेज का माहौल कैसा होता है? जब नैक वाले आते हैं कॉलेज, यूनिवर्सिटी भी जो आते हैं तो कॉलेज यूनिवर्सिटी का माहौल कैसा होता है? ऐसा लगता है कोई त्योहार होने जा रहा है। सब चीज़ बड़े सिस्टमेटिक है, बहुत सारे ऑर्डरली सब कुछ रखा हुआ है, लाइब्रेरी में सारे किताब सही से रखा है, कैंपस बिल्कुल साफ सुथरा है, पेड़ पौधा को भी कलर कर देते हैं। तो बड़े अच्छे से माहौल बना के नैक वालों का स्वागत किया जाता है। एक बार अच्छी ग्रेड मिल गया फिर जैसे थे वैसे हो जाते हैं, ठीक है। सो व्हाई वी गिव सो मच इम्पोर्टेंस टू रैंकिंग, कॉलेज का रैंकिंग, आपकी इंडिविजुअल रैंकिंग, ये सब चीज़ों को हम क्यों इम्पोर्टेंस देते हैं? बिकॉज रैंकिंग इज नाउ द मेजर फैक्टर ऑन द बेसिस ऑफ विच यू गेट लिबरल फंडिंग। आपको ऑटोनॉमी, आपकी फंडिंग, ये सब नाउ रैंकिंग की बेसिस पे मिलता है, ठीक है। यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सीलेंस, एमिनेंट यूनिवर्सिटी, ठीक है। A++ यूनिवर्सिटी, A+ यूनिवर्सिटी, A यूनिवर्सिटी। तो आजकल आप फिंगरप्रिंट में मोबाइल में पता कर सकते हो
मेडिकल एजुकेशन के लिए कौन सा कॉलेज सही है, उसकी क्या रैंकिंग है, इंजीनियरिंग का रैंकिंग क्या है, सोशल साइंस का रैंकिंग क्या है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री फार्मास्यूटिकल साइंसेस का रैंकिंग, तो आप हर चीज आजकल आप मोबाइल फोन से रैंकिंग देख सकते हो। उसकी नैक का ग्रेड क्या है, उसका NIRF का रैंकिंग क्या है, उसकी ग्लोबल जो टाइम्स हायर एजुकेशन वगैरह है उसकी रैंकिंग क्या है, QS रैंकिंग क्या है। तो ये आजकल न्यूज, इट हैज बिकम ए न्यूज पेपर हेडलाइन नाउ कि किसको रैंकिंग क्या मिला है कोई। तो और जैसे अच्छे अगर आपको रैंकिंग मिलता है, फिर कॉलेज वाले और यूनिवर्सिटी वाले उसको बार बार दिखा दिखा के अच्छे फैकल्टी और अच्छे स्टूडेंट्स के लिए एडवर्टाइज करते हैं कि हमारे कॉलेज जो है A++ है, ठीक है, एंड A++ इज द हाईएस्ट रैंकिंग एज फॉर द NAC, ठीक है। तो इसीलिए आजकल हमसे ये कहा जाता है कि आप खाली पढ़ाओगे नहीं, आपको रिसर्च करना है, क्योंकि रिसर्च करोगे तो आपकी रैंकिंग बढ़ेगा। रिसर्च में आप मतलब PhD सुपरवाइज कर सकते हो, पेपर प्रेजेंट कर सकते हो, बुक चैप्टर लिख सकते हो, बुक लिख सकते हो, रिसर्च प्रोजेक्ट ले सकते हो, रिसर्च फेलोशिप ले सकते हो, सेमिनार ऑर्गेनाइज कर सकते हो, कॉन्फ्रेंस। तो आप कोई भी एकेडमिक काम जब करते हो उसकी आजकल एक पैरामीटर डिवाइस किया गया कि इसी बेसिस पे आपकी रैंकिंग होगा, उसी बेसिस पे आपकी प्रमोशन होगा, उसी बेसिस पे आपकी कॉलेज की रैंकिंग होगा, यूनिवर्सिटी का रैंकिंग होगा, कंट्री का रैंकिंग होगा। इंडिया की सोशल साइंस रैंकिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या है, इंडिया की मेडिकल साइंस की रैंकिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या है, तो कंट्री का भी रैंकिंग हो रहा है। तो क्योंकि रैंकिंग आजकल हो रहा है और रैंकिंग का मेजर कंपोनेंट जो रिसर्च है, तो इसीलिए हर कोई आपसे ये उम्मीद करता है कि यू हैव टू डू ए लॉट ऑफ रिसर्च, ठीक है। तो रिसर्च आजकल आप पसंद नापसंद करके रिसर्च नहीं करोगे, आपको करना ही है। अगर आपको प्रमोशन पाना है, अगर आपको सस्टेन करना है, एकेडमिक लाइफ मेंटेन करना है, यू हैव टू डू गुड रिसर्च। उसी वजह से कई सारे हम कहते हैं UGC बेस्ड जर्नल, UGC केयर लिस्टेड जर्नल, स्कूपर्स इंडेक्स जर्नल, ये जर्नल, तो रैंकिंग आज नाउ बिकम ए बिजनेस, ठीक है। तो ये एक मेजर चेंज है जिसको आप समझना है कि आजकल हर फंडिंग काउंसिल जो है आपको पैसा देता है कि आप रिसर्च करो, पब्लिकेशन करो, उसको बुक के रूप में, उसको रिसर्च पेपर के रूप में, उसको चाहे रिसर्च मतलब जो UGC केयर लिस्टेड है वो, स्कूपर्स इंडेक्स्ड हो, ये सारी चीजें आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, बिकॉज यू हैव टू डू ए लॉट ऑफ रिसर्च एंड रिसर्च इज इम्पोर्टेंट फॉर योर पर्सनल कैरियर एंड ऑल्सो फॉर द रैंकिंग एंड बेटर ग्रेड ऑफ योर कॉलेज और यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो ये चीज भी आजकल एक नया चीज है जिसको हमें समझना है कि रिसर्च को आजकल सरकार क्यों इतना प्रायोरिटी दे रहा है, सारे फंडिंग काउंसिल आपकी कॉलेज आपकी यूनिवर्सिटी क्यों इतना प्रायोरिटी दे रहे हैं, समझ में आ रहा है? जी सर। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. The next is the shift from fundamental research to applied research. सर Next is, yes, कुछ पूछना है, किसी को कुछ पूछना है, हाथ उठा रहे हैं, बताइए। क्या होता है? आपकी वॉइस ब्रेक हो रहा है, प्लीज आप बताइए और एक बार। ट्रांसलेशनल रिसर्च नहीं समझ पाया। क्या ट्रांसलेशनल रिसर्च, ट्रांसनेशनल रिसर्च ना, क्या कह रहे हैं? ट्रांसलेशनल इफेक्ट। ट्रांसलेशनल रिसर्च, ट्रांसलेशन स्टडीज को ट्रांसलेशनल रिसर्च कहते हैं, और कौन सा कहते हैं? जो ट्रांसलेशन करते हैं ज्यादातर आजकल, जो ओरिजिनल टेक्स्ट को जो इंडियन लैंग्वेजेस में, लोकल लैंग्वेजेस में, रीजनल लैंग्वेजेस में ट्रांसलेशन करते हैं, वही ट्रांसलेशनल रिसर्च होता है। एनीवे, तो नेक्स्ट एंड लास्ट, रिसर्च कहाँ आई सर? हाँ क्या करें? वो तो सर ट्रांसलेशन हो गया सिंपली, तो उसमें रिसर्च कहाँ से आ गई? ट्रांसलेशन में रिसर्च ये होता है, जैसे अभी यूक्रेन में एक जगह है ओडिशा, ठीक है, ओके सर। उस ओडिशा का, भुवनेश्वर वाला ओडिशा, जो ओडिशा, वो इंडिया का ओडिशा के साथ क्या रिलेशनशिप, खाली ट्रांसलेशन है, आप नहीं जानते हो एक पर्टिकुलर लैंग्वेज, एक पर्टिकुलर वर्ड अगर वो यूज करते हैं, उस वर्ड का पर्टिकुलर उस चीज में, मैं नेक्स्ट लेक्चर में आऊंगा। हम लोग बहुत सारे कंसेप्ट, बहुत सारे मेथड के द्वारा लोगों की साइकोलॉजी, लोगों की क्रॉस कल्चरल एक्सचेंज, पीपुल्स टू पीपल कांटेक्ट, वो सब जानते हैं। जैसे हम मान लो, जैसे वहां पे भी ओडिशा है, यहाँ पे भी ओडिशा है, सिर्फ लिखने का स्टाइल अलग है, तो व्हाट इज द सिमिलरिटी बिटवीन दैट ओडिशा एंड दिस ओडिशा? नहीं हो सकता। सर इसे तुलनात्मक रिसर्च कर सकते हैं, कह सकते हैं, बट तुलना ऐसा ना, जब तक आप उनकी लैंग्वेज को नहीं समझोगे, उनकी ओरिजिनल टेक्स्ट मैन्युस्क्रिप्ट वगैरह को नहीं स्टडी करोगे, तब आपको सिमिलरिटी डिसिमिलरिटी कंपैरिजन कैसे मिलेगा? एक और एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, जस्ट अ मिनट, लेट मी फिनिश वन, देन वी विल शिफ्ट टू अनदर। जैसे मान लीजिए हम बहुत सारे चीजों को लेकर बहुत सारे सिमिलरिटी जो हमें पता नहीं है, बहुत सारे सिमिलरिटी है, बहुत लोगों में बहुत सिमिलरिटी है।
आप किसी को नमस्ते कहते हो, किसी को विश करते हो, तो खाली नमस्ते करने का मतलब थोड़ी है कि आप खाली नमस्ते करने का मतलब ये भी होता है कि आप कम्युनिकेशन शुरू करना चाहते हो। जब आप नमस्ते करते हो, पूछता है और कैसे हो, ठीक है। तो बहुत सारे चीज हमारे हैं जो ओरिजिनल टेक्स्ट है, ओरिजिनल मानुस्क्रिप्ट है, जो जैसे मान लो, जैसे अगर इंडिया में अगर देखोगे कि हम लोग कहते हैं कि मतलब अरिस्टोटल को हम कहते थे फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, बट अरिस्टोटल से पहले कौटिल्य ने बहुत अच्छे काम किए हैं, लोगों को पता नहीं था, समझ। तो जब हम ओरिजिनल टेक्स्ट, ओरिजिनल मानुस्क्रिप्ट को स्टडी करते हैं, एक्सेस करते हैं, उससे खाली हमें लैंग्वेज टू लैंग्वेज ट्रांसलेशन नहीं करते, हमें उस लोगों के बारे में, उनकी सोच के बारे में, उनकी कल्चर के बारे में, उनके स्टेटक्राफ्ट के बारे में, उनकी थ्योरीज के बारे में, उनकी कॉन्सेप्ट, हर चीज के बारे में पता चलता है। इसीलिए आजकल जो है हम लोग ट्रांसलेशन को भी इतना इक्वली इंपॉर्टेंट देते हैं, पर्टिकुलरली फ्रॉम द पॉइंट व्यू ऑफ रिसर्च। ट्रांसलेशन का मतलब ये नहीं मैं हिंदी में कह रहा हूँ, इंग्लिश में कह रहा हूँ, हो गया। You understand what is exactly in their mind, what is the culture, what is the language, what was the idiom, ये सब चीजों को हम फोकस करते हैं, समझ। जैसे हम एक और एग्जांपल देते हैं, जैसे हम देखोगे कि हम कहते हैं भाई आजकल सारे लैंग्वेज में जितने सारे बॉलीवुड सॉन्ग्स है, उसमें देखोगे कि गोरी एक वर्ड यूज करते हैं, गोरी, ठीक है। तो गोरी का मतलब वो खाली ट्रांसलेशन करोगे व्हाइट, ये थोड़ी है। गोरी का मतलब है कि एक पर्टिकुलर कलर को प्रायोरिटाइज किया जा रहा है, और हर कोई आजकल गोरी बनने के चक्कर में कितने बड़े बड़े ब्यूटी इंडस्ट्री सब जनरेटिव हुआ है कि फेयर एंड लवली क्रीम लगा लो, ये लगा लो, वो लगा लो, हर कोई व्हाइट बनने के चक्कर में आजकल रहता है, ठीक है। पार्लर देखोगे, जितने सारे ये सब, जितने सारे ब्यूटी इंडस्ट्री जो देखोगे, दैट हैज ग्रोन बिकॉज ऑफ दिस। तो गोरी का मतलब खाली नहीं व्हाइट हो गया बस, इतना ही हो गया। गोरी का जो लीगल इम्प्लीकेशंस पड़ रहा है, जो पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन पड़ रहा है, जो इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन पड़ रहा है, वो देखो, हर किसी को आजकल गोरी बनना है, राइट। उसकी चक्कर में कितने सारे देखो इंडस्ट्री आ रहा है, ब्यूटी इंडस्ट्री आ रहा है, ये इंडस्ट्री आ रहा है, वो इंडस्ट्री आ रहा है, जितने सारे डेवलप कॉस्मेटिक्स वगैरह जो प्रोड्यूस हो रहा है, वो सब उसी से रिलेटेड है। तो इसीलिए ट्रांसलेशन का मतलब ये नहीं खाली वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करो, रादर उसकी जो माइंडसेट है, जो लोगों की जो सोच है, जो विचारधारा है, उस चीजों को हमें स्टडी करना, वो भी उसी में आता है। एनीवे, नेक्स्ट। सर मैं ये पूछना चाह रही थी, अगर हम कोई रिसर्च प्रोजेक्ट लेते हैं तो क्या कॉलेज का नैक होना जरूरी है? नहीं, कॉलेज का नैक नहीं होना वो कोई कंडीशन नहीं, बस वो यूजीसी रिकॉग्नाइज कॉलेज हो, बस यूजीसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या कॉलेज हो, इतना ही कंडीशन है। एक हम कोई फेलोशिप का फॉर्म भर रहे थे, शायद कोई रिसर्च प्रोजेक्ट ही था हम लोगों के जो न्यू अभी अपॉइंट हुए उनके लिए। कहाँ के था? फंडिंग काउंसिल यूजीसी की कोई डीएस UGC का कोठारी रिसर्च फेलोशिप थी, हाँ ठीक है, कोठारी फेलोशिप कुछ ऐसी कोई फेलोशिप थी, तो उसमें मांगा था कि कॉलेज का नैक होना चाहिए। ऐसा है। ICSSR का जो आप अगर रिसर्च प्रोजेक्ट करते हो, तो बहुत सारे रिसर्च प्रोजेक्ट, मतलब मैं उसमें आऊंगा, फिर ऐसा ना, फिर हम डाइवर्ट हो जाएंगे मेन चीजों से। मैं उस नेक्स्ट लेक्चर में वही चीज में बताऊंगा, तो इसीलिए वो सब चीजों को मैं आगे के लिए रखते हैं। फिलहाल मैं क्वेश्चन नहीं ले रहा हूँ, लेट मी फिनिश फास्ट दी लेक्चर, देन विल टेक कीप सम टाइम फॉर डिस्कशन। फिर उसके बाद नहीं तो हम पूरा डाइवर्ट हो जाएंगे, कुछ चीज नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया कि जो नेक्स्ट जो मेजर शिफ्ट हो रहा है, दैट इज फ्रॉम फंडामेंटल रिसर्च टू अप्लाइड रिसर्च, ठीक है। पहले हम फंडामेंटल रिसर्च करते थे, रिसर्च फॉर द सेक ऑफ रिसर्च, नॉलेज फॉर द सेक ऑफ नॉलेज। अभी गवर्नमेंट अगर पैसे दे रहा है किसी प्रोजेक्ट के लिए, या कोई फंडिंग काउंसिल अगर आपको प्रोजेक्ट दे रहा है, तो आपसे ये उम्मीद करते हैं कि जो स्टडी आपको दिया गया है, उससे देश को क्या बेनिफिट होगा, सरकार को क्या बेनिफिट होगा, कम्युनिटी को क्या बेनिफिट होगा, ठीक है, उसकी सोशल बेनिफिट क्या होगा, उसकी पॉलिटिकल बेनिफिट क्या होगा, उसकी इकोनॉमिक बेनिफिट क्या होगा। ये नहीं कि खाली आप पैसे लो, रिसर्च किया, पता नहीं आपकी थीसिस, आपकी रिपोर्ट, आपकी जो रिसर्च आउटपुट वो कहाँ गया। आजकल ये कहा जाता है कि आप अपना रिसर्च करिए, पैसा लीजिए, रिसर्च करिए, 2-4 उसको पब्लिश करिए, रिसर्च पेपर पब्लिश करिए, बुक फॉर्म में उसको पब्लिश करिए, कहा कि आपने जो काम किया है दूसरों को पता चले आपने क्या काम किया है, और सरकार को भी कुछ बेनिफिट हो, दूसरे लोगों को, दूसरे स्टेट को, दूसरे संप्रदाय को भी कुछ बेनिफिट हो। ये नहीं खाली आप आपने लिया और API पॉइंट स्कोर किए, बस दैट इज नॉट द पर्पस ऑफ रिसर्च, ठीक है। तो आजकल इसीलिए सारे फंडिंग काउंसिल फंडामेंटल रिसर्च से हटके क्या कर रहे हैं, अप्लाइड रिसर्च की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो आप जो भी आपको फंडिंग मिले, तो आप उसका ऐसे इस्तेमाल करो, इस तरह रिसर्च आउटपुट प्रोड्यूस करो, इस तरह रिसर्च आउटकम हो जो सरकार के लिए, देश के लिए, स्टेट के लिए, लोगों के लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। तो आपसे ये भी उम्मीद किया जा रहा है। और लास्ट जो है कि इम्पैक्टफुल एंड आउटकम ओरिएंटेड रिसर्च,
ठीक है, नॉर्मल रिसर्च से वी आर मूविंग फ्रॉम नॉर्मल रिसर्च टू इम्पैक्टफुल एंड आउटकम ओरिएंटेड रिसर्च। तो आजकल देखोगे कहीं पे कोई जर्नल वगैरह में पब्लिश करो, उसकी इम्पैक्ट फैक्टर होता है। ठीक है, खाली आप जो है ऐसे ले लिया, कर लिया, फेंक दिया, बस वो सब चीज नहीं है। यू हैव टू गेट इट पब्लिश्ड। जैसे हम लोग कहते हैं इंडिया में अगर आपको पब्लिश करना है यूजीसी के लिस्टेड जर्नल में पब्लिश करना है, बाहर अगर आप करते हो स्कूपर्स इंडेक्स में होना चाहिए, उसकी इम्पैक्ट फैक्टर ये होना चाहिए, वो पीयर रिव्यू होना चाहिए। ये सब चीज का जो कंडीशन लगाते हैं, इट इज बिकॉज ऑफ दैट that you will not just get it published, you will publish in a good quality journal जो peer reviewed हो, जिसकी impact factor हो, और जिसको लोग साइट करते हैं, जिसको लोग कोट करते हैं, जिसकी कोई ऑथेंटिसिटी हो, ऐसे टाइप की सोर्सेस में पब्लिश करो। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, these are all now expected from you as a researcher, and this is how research environment is changing not in terms of data and approach, rather changing in terms of priorities and focus। ठीक है, तो आप पढ़ाओगे, रिसर्च करोगे, आप फंडामेंटल रिसर्च करोगे, अप्लाइड रिसर्च करोगे, आप पब्लिश करोगे, इम्पैक्टफुल और आउटकम ओरिएंटेड रिसर्च जर्नल में करोगे। ठीक है, तो आपको ये करना है। ठीक है, तो इस तरह जो है आजकल हर फंडिंग काउंसिल अपना प्रायोरिटाइज कर रहा है। और अगर आपको आगे रिसर्च करना है, फेलोशिप लेना है, या कोई भी एकेडमिक एक्टिविटी करना है जिसके लिए आपको सरकार की सपोर्ट चाहिए, फंडिंग काउंसिल की सपोर्ट चाहिए, तो आपको ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है। ठीक है, समझ में आ रहा है? सर जी सर। Yes, sir. Yes, sir. सर तो, इम्पैक्ट yes, फैक्टर sir. बता दीजिए, इम्पैक्ट फैक्टर पीयर रिव्यूड। यस सर। दोबारा बताइए आपका क्वेश्चन डॉक्टर जी शालिनी। सर, इम्पैक्ट फैक्टर और पीयर रिव्यूड के बारे में बता दीजिए सर, क्या होता है? पीयर रिव्यूड होता है, जैसे मान लो आपने जब कोई आर्टिकल या रिसर्च पेपर लिखते हो, तो आप तो अपनी तरफ से बेस्ट लिखते हो, बट उसमें जो मतलब दूसरे लोग उसको रिव्यू करते हैं, आपके एरिया में दूसरे एक्सपर्ट उसको रिव्यू करके आपने जो कुछ लिखा उसकी लिमिटेशन के बारे में बताते हैं कि भाई आपने तो ये लिखा, इसमें ये लिमिटेशन है, भाई आपने ये चीज को छोड़ दिया, आपने वो चीज को इनपुट किया नहीं, आपका डेटा का प्रॉपर आना। सो दे आर गिविंग एकेडमिक एक्सपर्ट ओपिनियन अबाउट योर रिसर्च पेपर। फिर जो पब्लिशर आपको बताते हैं कि ये आपकी पेपर तो है, इसमें ये स्ट्रेंथ है, इसमें ये वीकनेस है, तो ये वीकनेस को ओवरकम करने के लिए आप इसको पेपर को इम्प्रूव करिए। फिर देन यू सेंड इट एंड दे एक्सेप्ट इट एंड इट इज पब्लिश्ड। पीयर रिव्यू का मतलब ये। इम्पैक्ट का मतलब है कि कितने लोग एक्चुअली उसको पढ़ते हैं, उससे इन्फ्लुएंस होते हैं, कोई सरकार उससे बेनिफिट ले रहा है क्या, मतलब वो तो कितने लोग आपको साइट करते हैं, कोट करते हैं, वो सब चीज़ों के बेसिस पे हम लोग बहुत सारे साइंटिफिक पैरामीटर, एज फैक्टर, ठीक है, ये फैक्टर वो फैक्टर जितना सारे करते हैं, तो दैट इज बेसिकली इम्पैक्ट। मतलब आप जो रिसर्च करते हैं उससे इम्पैक्ट किस तरह हम इम्पैक्ट उसका मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक है ना, आप तो कहोगे मैंने तो एक पेपर पब्लिश कर दिया, मेरे का 10 एपीआई पॉइंट हो गया, बट दैट 10 पॉइंट जो है, अगर वो कोई इम्पैक्टफुल रिसर्च जर्नल में पब्लिश हो रहा है, उससे कितने लोगों को और बेनिफिट हो रहा है, सो दे साइंटिफिकली कैलकुलेट दैट, सो दैट इज कॉल्ड इम्पैक्ट फैक्टर। ठीक है, दोनों चीजें अलग अलग। सर जैसे जो रिसर्च जर्नल होते हैं कईयों पे लिखा रहता है इम्पैक्ट फैक्टर 8 है या 7 है, तो हम ये कैसे जाने कि वाकई में उनका इतना है या नहीं है? तो आप उसको ऐसा ना, उस सोर्स को आप सिर्फ उसी जर्नल को नहीं, अलग अलग आजकल इम्पैक्ट फैक्टर का ग्रेडिंग हो रहा है, तो आप गूगल वगैरह में सर्च करोगे तो बहुत सारे अलग सोर्स भी बता देंगे उसका एक्चुअल क्या इम्पैक्ट फैक्टर है। जैसे एच इंडेक्स है, आजकल एक एच इंडेक्स यूज करते हैं इम्पैक्ट फैक्टर के लिए, तो आप उसको देख सकते हो। जो इंडिपेंडेंट इम्पैक्ट इवैल्यूएशन जो साइट्स वगैरह है वो लोग भी बता देते हैं। जैसे आप मान लो, आप कहोगे इंडियन जर्नल ऑफ पॉलिटिकल साइंस, अब मान लो इंडियन जर्नल ऑफ पॉलिटिकल साइंस जो इम्पैक्ट फैक्टर क्लेम कर रहा है, आप दूसरे इंडिपेंडेंट सोर्सेज से वेरीफाई कर सकते हो वो क्लेम सही है गलत है। ठीक है, वो आज बताइए। जो न्यू जर्नल कोई 2-4 साल से छप रहा है, वो भी इम्पैक्ट फैक्टर 7-8 लिखता है, तो हम लोग कैसे सर बिलीव करें उस पे? मैं अभी तो बताया कि आप उस इंडिपेंडेंट जो जर्नल क्लेम करता है, खाली आप उसी को सर्च ना करो, आप दूसरे इंडिपेंडेंट सोर्सेस को सर्च करो जो उस जर्नल के बारे में करेक्ट असेसमेंट दिए होंगे। इंडिपेंडेंट सोर्स कौन सा है सर, कहाँ से हम पता जैसे मैंने कहा गूगल का जैसे एच इंडेक्स फैक्टर है, ठीक है, तो आप अगर एच इंडेक्स देखोगे तो उसमें उस जर्नल का इम्पैक्ट फैक्टर बताएगा कितना है, तो आप उस जर्नल की बात में क्यों आओगे, तो आप इंडिपेंडेंटली वेरीफाई कर सकते हो। ऐसा है, अभी अगर हम ये सारे डिस्कशन करेंगे हमारी लेक्चर आगे नहीं जाएगा, तो मैं समझ रहा हूँ सर पहले मैं लेक्चर कंप्लीट कर लेते हैं, कुछ टाइम छोड़े हैं डिस्कशन के लिए। सर एक सवाल और था कि आपने ट्रांसलेशनल और अप्लाइड रिसर्च की बात की,
तो ट्रांसलेशनल रिसर्च में भी हम देखते हैं कि लैब टू लैंड ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है, जो लैब में हम डेवलप करते हैं और फिर वो लैंड में आता है, तो उसको ट्रांसलेशनल रिसर्च की कैटेगरी में रखते हैं। देन हाउ ट्रांसलेशनल रिसर्च डिफर्स फ्रॉम अप्लाइड रिसर्च? देखिए, अप्लाइड रिसर्च का क्या मतलब है? कोई भी चीज जो है अगर एप्लीकेशन ओरिएंटेड है, देखिए दो प्रकार, मतलब बेसिकली हम लोग 3 प्रकार का रिसर्च का कैटेगराइजेशन करते हैं। एक कहते हैं फंडामेंटल रिसर्च, एक कहते हैं अप्लाइड रिसर्च, एक कहते हैं एक्शन रिसर्च। ठीक है, रिसर्च जो है 3 प्रकार की हो सकता है, फंडामेंटल हो सकता है, अप्लाइड हो सकता है, एक्शन हो सकता है। जब कोई भी रिसर्च जो है हम One sir, basic research also वो फंडामेंटल को divided बेसिक into कहते हैं। कोई टर्मिनोलॉजी कैसा यूज करे, दैट इज फंडामेंटल रिसर्च। बेसिक रिसर्च का मतलब ही फंडामेंटल रिसर्च है। फंडामेंटल रिसर्च व बेसिक रिसर्च का मतलब है नॉलेज प्रोडक्शन फॉर द सेक ऑफ नॉलेज प्रोडक्शन। बस नॉलेज के लिए आप नॉलेज कर मतलब रिसर्च करते हो, नॉलेज गेन करने के लिए, दैट्स ऑल। वेदर दैट नॉलेज इज एप्लीकेबल इंस्टेंटली और इन फ्यूचर, दैट डजंट मैटर। ठीक है, अप्लाइड रिसर्च में आप जो भी रिसर्च करते हो उसको अप्लाई करते हो कि सरकार की कोई पॉलिसी है, सरकार की कोई 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 पॉलिसी सही से काम नहीं करा, उसमें कोई लूप होल्स है क्या है, तो बेसिकली आप एग्जामिन करते हो और जो रिसर्च करते हो उससे पॉलिसी कम्युनिटी को बेनिफिट होता है। सरकार को हो सकता है, ब्यूरोक्रेसी को हो सकता है, किसी और कंट्री को हो सकता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को हो सकता है। आपका रिसर्च से जब किसी और का कोई और अगर आपकी रिसर्च का फाइंडिंग्स का इस्तेमाल करके कोई मेजर बेनिफिट ले रहा है, सो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड अप्लाइड रिसर्च। ठीक है, एक्शन रिसर्च क्या होता है ना, जैसे पर्टिकुलर टास्क ओरिएंटेड, जैसे वर्ल्ड बैंक ने कोई पर्टिकुलर काम दिया, आप साउथ एशिया के बारे में ये करिए, तो दैट इज कॉल्ड एक्शन रिसर्च। मेधा पाटेकर ने कोई नर्मदा बचाओ आंदोलन को रोकने के लिए कोई सजेशन अगर दिया है बिकॉज इज एन एक्टिविस्ट, तो वो एक्शन रिसर्च है। अरुंधति राय ने कोई रिसर्च किया, दैट इज एक्शन रिसर्च। तो बेसिकली कहने का मतलब कि आप कई बार रिसर्च करते हैं, उसका एप्लीकेशन के बारे में आप भूल जाते हैं, बट somebody will study your research proposal by research findings, and if that findings would be helpful for the government policy, that is called applied research। पर जब हम कोई solution oriented study करते हैं तो उसको applied research कहते हैं। ठीक है, तो 3 प्रकार का रिसर्च है। आप डिसाइड करो कि ट्रांसलेशनल स्टडीज किस में आ रहा है। मैंने तीनों का कैटेगराइजेशन बता दिया। एनीवे, मतलब अभी हम लोग ये देखते हैं कि जो अगर आप रिसर्च करते हो तो फंडिंग, आपको जो मेजर फंडिंग जो है वो कहाँ से मिलेगा और किस तरह मिलेगा और आपको कब अप्लाई करना है, कैसे करना है। ठीक है, बिकॉज आई स्पेंट ए लॉट ऑफ टाइम इन the Indian Council of Social Science Research, so basically I will be telling the funding opportunities in ICSSR for you as a social scientist, for you as a medical practitioner, for you as a natural scientist। तो आप किसी भी डिसिप्लिन का हो तो ICSR से जो फंडिंग है वो मोस्टली इट इज इन ट्रांस डिसिप्लिनरी नेचर। ठीक है, तो आप अगर आप सोचते हो कि इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च जो है खाली सोशल साइंटिस्ट को देता है, दैट इज ए रॉन्ग थिंकिंग, राइट। रादर ICSR funding, almost all funding councils, as I said, they are moving from multidisciplinary to transdisciplinary, और इसीलिए उनकी मोस्टली जो फंडिंग है that is beneficial for everyone, right? The Indian Council of Social Science Research was established in the year 1969 by the Ministry of Education for 2 purposes. One was to promote social science research. The second was to विवेक नटियाल जी प्लीज म्यूट कर दें आपको अपने आप, विवेक नटियाल। So the first purpose was to promote social science research, and the second was to fund social science research, right? But over the years, it has shifted from disciplinary research to multidisciplinary research and multidisciplinary research to transdisciplinary research. If you look at the ICSR website, right, there are lots of funding opportunities that you can avail. So the first funding is called research project, right? The first funding available in the ICSR for all faculties, for all researchers, is the research project. And ICSR specifically grants 4 types of research project. ICSR 4 प्रकार के research project देता है। ठीक है, first is called minor project, second is called major project, third is called collaborative research project, and the fourth is called international collaborative research project. ठीक है, 4 प्रकार की research project है। विवेक नटियाल जी प्लीज अपने आप को म्यूट कर दें। I have removed him, right? So yes,
So what I'm trying to say is there are 4 types of research projects. You know, the first is what you call the minor research project. The second is called major research project. Third is called collaborative research project, and fourth is called international collaborative research projects. Right? Minor research project जो है, that is for 10 lakh rupees. The budget is 10 lakh rupees and you have to complete that in 1 year. Right? Major project जो है वो 25 lakhs rupees का है और that you have to complete in 2 years. जो कोलैबोरेटिव रिसर्च प्रोजेक्ट है दैट इज अप टू 50 लाख रुपीज जो आपको 2 साल में पूरा करना है, और जो इंटरनेशनल कोलैबोरेटिव रिसर्च प्रोजेक्ट है वो अप टू 1 करोड़ है और उसको आपको 3 साल में पूरा करना है। ठीक है, ये जो प्रोजेक्ट, जो भी कोई प्रोजेक्ट आप करोगे उसके लिए आपका पीएचडी होना और कुछ पब्लिकेशन उस एरिया में होना जरूरी है। राइट, यू शुड हैव ए पीएचडी ऑन योर ओन एंड यू शुड हैव सम पब्लिकेशन इन दैट एरिया ऑफ रिसर्च। अभी आईसीएसआर का जो माइनर और मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट है उसकी एडवर्टाइजमेंट हुआ है। ठीक है, अगर आप लोगों को अप्लाई करना है 15 अक्टूबर तक आपको एप्लीकेशन भेजना है। एप्लीकेशन कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, वन इज अबाउट योरसेल्फ, वन इज अबाउट द रिसर्च प्रपोजल। ठीक है, ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट होने के 10 डेज के अंदर अंदर आपको उसका प्रिंट आउट को ड्यूली फॉरवर्डेड करके आईसीएसआर हार्ड कॉपी भेजना है। ठीक है, अगर आपका प्रोजेक्ट शॉर्टलिस्टेड होता है तो आपको इंटरेक्शन के लिए बुलाया जाएगा, व्हिच में भी ऑनलाइन और ऑफलाइन, और उसके बाद आपको रिसर्च प्रोजेक्ट अवार्ड होगा। ठीक है, तो अभी अगर आपको अप्लाई करना है 15 अक्टूबर तक आपको माइनर और मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट के एप्लीकेशन भरना होगा। ठीक है, तो अगर आप इसके बारे में ज़्यादा जानकारी जानना चाहते हो तो 2-3 सोर्सेस है। एक तो है कि आप आईसीएसआर का वेबसाइट को डायरेक्टली विजिट करो। ठीक है, विच इज कॉल्ड www.icssr.org। ठीक है, Yes, sir. www.icssr.org। ठीक है, उसको छोड़ के अगर आप और ज़्यादा मतलब अगर आप गाइडलाइंस वगैरह पढ़ के आप बोर हो जाओगे या आपको समझ में नहीं आएगा या आपको बहुत ज़्यादा लेंथी लगेगा, उसकी सेकंड सोल्यूशन है कि देयर इज ए यूट्यूब चैनल कॉल्ड रीबूटिंग मास्टर साइंस, rebooting master science, right, where you will find all the ICSR programs and schemes in a video format। तो वो आप ही देख सकते हो। राइट, रीबूटिंग, सर एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए इसको। रीबूटिंग मास्टर साइंस। ठीक है सर, इस प्रोजेक्ट में पीएचडी होना अनिवार्य है? सब कुछ है, एवरीथिंग। पीएचडी कंपलसरी है, सबके लिए पीएचडी होना जरूरी है। पहले आप पीएचडी करोगे तभी आप रिसर्च प्रोजेक्ट कर पाओगे। ठीक है, रिसर्च पेपर की भी होगी सर इसमें? फिर तो रिसर्च पेपर भी होने चाहिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप सम डिजायरेबल पब्लिकेशन, रिसर्च पेपर मैंडेटरी नहीं है, उसके बिना आप अप्लाई कर सकते हो, बट प्रिफरेबली आप जिस एरिया में काम करते हो कुछ पब्लिकेशन उसमें होनी चाहिए। बस कोई कंडीशन नहीं कि 5 होना चाहिए और पक्का होना चाहिए, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये सेकेंड सोर्स है। बाकी मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूँ, तो इस 1 मिनट में आप अपनी बताएं। सर मेजर के लिए सर मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए तो एसोसिएट मांगा जाता है ना सर? नहीं, एसोसिएट की कंडीशन नहीं है। नो नो नो, एसोसिएट इज नॉट ए कंडीशन फॉर मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट। आप असिस्टेंट कंसीडर नहीं करते हैं सर? कितनी बार अप्लाई मेजर? ये कौन कह रहा है आपको? ये कौन कह रहा है? ये सब अफवाह है। आप वो सब चीजों को छोड़ो। मैंने खुद उस एरिया मतलब उस ऑर्गेनाइजेशन में टॉप पोजीशन में काम किया हूँ। गाइडलाइन वगैरह मुझे पता है कि हमने कैसे उसको बनाया। वो सब कंडीशन नहीं है, सब अफवाह है। आप इधर उधर की बात को मत सुनो। जो चीज गाइडलाइन में लिखा है उसी को फॉलो किया जाता है। और एक और सर प्रश्न था कि आईसीएसएसआर में अभी मेरे कॉलेज से 2 सेमिनार के लिए प्रपोजल गए और ज्योग्राफी का प्रपोजल काफी मतलब ठीक से सिस्टमेटिक भी नहीं था। वहीं पे डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज का प्रपोजल काफी सिस्टमेटिक करके हम लोगों ने दिया। ग्रांट उनकी रिलीज हुई, हम लोग की नहीं हुई सर, ऐसा क्यों? वो ऐसा है, देखो वो एक्सपर्ट आते, वो आईसीएसआर बैठ के अपने आप नहीं करता है। वो एक्सपर्ट टीम होते हैं। जो एक्सपर्ट टीम को जो चीज सही लगता है वो उसके लिए अच्छे मार्क देते हैं। तो आपका सही नहीं लगा होगा, उसको नहीं दिए होंगे। उसके बारे में हम यहाँ पे कमेंट करना सही नहीं होगा। ठीक है, वो सब देखो, वो सब इंटरनल इश्यूज है। उस जो भी कोई करते हैं वो एक्सपर्ट करते हैं। मैं नहीं करता कि मैं आईसीएसआर का डायरेक्टर हूँ, मैं खुद बैठ के डिसाइड करूंगा किसको पैसा देंगे किसको नहीं देंगे। देयर इज एन एक्सपर्ट कमिटी फॉर ईच सब्जेक्ट एंड दे टेक द फाइनल डिसीजन। ठीक है, तो वो सब चीजों को हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। और कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन हो तो बताओ, अदरवाइज विल प्रोसीड।
सर इसके लिए डॉक्टर सिंह जॉब बताएं। में कितने साल होने चाहिए? सर आवाज नहीं आ आप अगर रही। एक साथ सारे लोग ना कहो, एक एक करके। डॉक्टर सीमा फर्स्ट। सर अगर कॉलेज 12F और 2B रजिस्टर्ड नहीं है तो भी क्या ग्रांट मिलती है? कॉलेज अगर 12F और 2B रजिस्टर्ड नहीं इट्स नॉट ए कंडीशन, नहीं है कंडीशन, सर, नॉट तो उसमें क्या अलग अलग फंडिंग है। ऐसा है, रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए 12B इज नॉट कंपलसरी, बट कोलैबोरेटिव रिसर्च और इंटरनेशनल रिसर्च के लिए 12B इज ए मस्ट। तो अलग अलग प्रोजेक्ट का, अलग अलग स्कीम का अलग अलग रिक्वायरमेंट है। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार पढ़ो और उसके बाद अप्लाई करो। गाइडलाइन को एक बार पढ़ो, उसके बाद अप्लाई करो। यस डॉक्टर रंजू सिंह, डॉक्टर रंजू सिंह, यस। सर मैं ये पूछ रही थी, क्या ये इस प्रोजेक्ट के लिए जॉब में कुछ साल होने अनिवार्य है कि आपके जॉब को इतने साल होने नहीं, चाहिए? कुछ साल नहीं। आपने जॉब किया तो बस, आपके आंसर में समझ गया, आपने ज्वाइन कर लिया तो आप एलिजिबल हो गए। कोई कुछ साल, 5 साल 10 साल कुछ नहीं चाहिए। जो लोग कह रहे हैं वो सब अफवाह है, ठीक है। आप जैसे ही ज्वाइन करोगे ऐसे ही अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एनीवे हम आगे चलते हैं, नहीं तो इसी में स्टॉक हो जाएंगे। तो जैसे मैंने बताया 4 प्रकार का रिसर्च प्रोजेक्ट है, माइनर है, मेजर है, कोलैबोरेटिव है, इंटरनेशनल कोलैबोरेटिव रिसर्च प्रोजेक्ट है। दोनों का जो 4 प्रकार का जो रिसर्च प्रोजेक्ट है, तो आप ये चारों का क्लासिफिकेशन, बजट और टाइम ड्यूरेशन टू कंप्लीट द स्टडी उसी बेसिस पे है। तो ये दोनों का अभी एडवर्टाइजमेंट हुआ है। तो अगर आपको अप्लाई करना है, यू सेंड द एप्लीकेशन। इसको छोड़ के मतलब जैसे आप आईसीएसआर का वेबसाइट को विजिट करके डायरेक्टली गाइडलाइंस वगैरह स्टडी कर सकते हो, पढ़ सकते हो, जान सकते हो। और जैसे मैंने यूट्यूब चैनल कहा, उसके बारे में भी आप मतलब उसको विजिट करके सारे प्रोग्राम्स एंड फंडिंग देख सकते हो। प्लस 1 मिनट के अंदर अंदर आप अपनी नाम, सब्जेक्ट और ईमेल एड्रेस चैट बॉक्स में शेयर करो, सो दैट आई विल सेंड यू सम मोर इंफॉर्मेशन अबाउट फंडिंग, ठीक है। 1 मिनट का टाइम है, उसी में आपको कंप्लीट करना है, अदरवाइज विल बी लेट, ठीक है। अपने नाम, अपनी सब्जेक्ट और अपनी ईमेल एड्रेस। गलत ईमेल एड्रेस लिखोगे तो मेल बाउंस हो जाएगा, ठीक है। So you write your subject, email address and your name, so that I will share some more interesting information about research funding, ठीक है। सर अगर पॉसिबल हो तो जो ग्रुप बना है एएमयू का व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें सेंड कर दीजिए, सभी को मिल जाएगा। हाँ, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, कर सकते हैं हम। जिन्होंने कर लिया, अगर उनका कोई क्वेश्चन है तो तब तक हम वो क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर सकते हैं। जिन्होंने भेज दिया तो वो लोग, अगर आपका कोई आप मुझे व्हाट्सएप कर दिए, मैं डाल दूंगा ग्रुप में। आप ठीक है, वेरी गुड, ये भी कर सकते हैं, बहुत बढ़िया रहेगा। तो एनीवे, हाँ दोबारा बताइए। सर साइंस में जो फंडिंग है वो भी साइट पे मिल जाएंगी? दिस इज ओनली बिल्कुल फॉर ऐसा ना, नो नॉट फॉर सोशल साइंस, इट इज फॉर ट्रांसडिसिप्लिनरी रिसर्च। So in case you are from science, you can collaborate with a social scientist and send a joint proposal. खाली साइंस का बेसिकली देखिए 3 प्रकार का रिसर्च आईसीएसआर एनकरेज करता है। इनफैक्ट होल फंडिंग काउंसिल्स दे आर एनकरेजिंग 3 टाइप्स ऑफ रिसर्च। एक होता है क्लिनिकल रिसर्च, दैट इज ओनली मींट फॉर मेडिकल साइंस पीपल। एक होता है लैब बेस्ड रिसर्च, दैट इज मींट फॉर नेचुरल साइंस पीपल। एक होता है फील्ड बेस्ड रिसर्च, दैट इज मींट फॉर सोशल साइंस। तो जब आप मान लो नेचुरल साइंस का हो, तो आपकी स्टडी खाली प्योरली लैब बेस्ड ना हो। some your study must have some relationship with field study। और मान लो आप, जैसे मैंने कोविड का एग्जांपल दिया, कोई ऐसे टॉपिक अगर आप चूज करते हैं जो ट्रांसडिसिप्लिनरी हो, जिसमें यू नीड सम सोशल साइंस एक्सपर्ट, सोशल साइंस पीपल कैन कोलैबोरेट विद नेचुरल साइंस पीपल। जैसे एनवायरमेंटल पॉल्यूशन हो रहा है, तो उसमें एनवायरमेंटल साइंस सोशल साइंटिस्ट मिलके एक जॉइंट प्रपोजल बना सकते हैं। जैसे जो आजकल देखोगे पेस्टिसाइड्स का एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है, अगर आप केमिस्ट्री का हो, यू कैन थिंक ऑफ ए रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन the use and misuse of pesticides and its environmental impact.
इम्पैक्ट, जिसके लिए आपको सोशल साइंटिस्ट के साथ मिलकर एक जॉइंट रिसर्च प्रोजेक्ट बनाना चाहिए। ठीक है, तो खाली प्योरली लैब बेस्ड अगर करोगे तो दैट यू आईसीएसआर इज नॉट ए गुड फोरम फॉर यू, यू शुड अप्लाई टू सीएसआईआर। अगर आप ट्रांस डिसिप्लिनरी कोई सोचते हो टॉपिक जिसमें आपको एक नहीं कई सारे फैकल्टी की जरूरत है, रिसर्चर की जरूरत है, तो उसमें आप जॉइंट रिसर्च प्रपोजल बना के आईसीएसआर को भेज सकते हो। सर फुल टाइम पीएचडी परस्यू करने के लिए भी आईसीसीएसआर से कुछ सपोर्ट मिलता है क्या? डॉक्टरल फेलोशिप मिलता है, जो मेरा सेकेंड मतलब अभी मैं सेकेंडली उसी के बारे में बताऊंगा। पहला तो रिसर्च प्रोजेक्ट था, सेकेंड इज फेलोशिप। ठीक है, पहले मैं लेक्चर खत्म कर लूं, अगर उसके मतलब लेक्चर हो सकता है लेक्चर के दौरान आपका कुछ आंसर आपको मिल जाए, अगर कुछ बचेगा तो हम लोग उसको बाद में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ठीक है। तो सेकेंड इज yes, second is what is called your fellowship. At present, ICSR gives 4 kinds of fellowship. One is called doctoral fellowship, the second is called postdoctoral fellowship, third is called senior fellowship, and fourth is called national fellowship. ठीक है, 4 प्रकार का फेलोशिप ICSR देता है। एक देता है पीएचडी करने के लिए, दूसरा देता है पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च करने के लिए, तीसरा देता है सीनियर फेलोशिप, चौथा देता है नेशनल फेलोशिप। ठीक है, अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में रजिस्टर्ड हो पीएचडी के लिए, यूजीसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी में हो, तो आप डॉक्टरल रिसर्च के लिए अप्लाई कर सकते हो। आईसीएसआर जो है डॉक्टरल रिसर्च फेलोशिप जो है अबाउट 500 डॉक्टरल फेलोशिप ईच ईयर देता है, और उसके लिए आपको नेट सेट वगैरह क्वालिफाइड होनी चाहिए और पीएचडी रजिस्टर्ड होनी चाहिए और आपकी प्री पीएचडी कोर्स होना चाहिए। ठीक है, आईसीएसआर का डॉक्टरल फेलोशिप जो है 2 साल के लिए है। तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर पीएचडी का रजिस्टर्ड हो तो आप अपना पीएचडी सिनॉप्सिस के साथ उसको प्रॉपर फॉरवर्ड करके एप्लीकेशन भेज सकते हो। ऑनलाइन एप्लीकेशन भेजोगे, उसकी प्रिंट आउट लेके आपको ऑफलाइन भी अप्लाई करना है, और आपके कोई रिटन टेस्ट नहीं होगा, तो जो आपने पीएचडी का सिनॉप्सिस दिया है उसी बेसिस पे सिलेक्शन होगा। सो यू विल इन केस योर पीएचडी इज एन ए गुड टॉपिक, इट इज वेरी good in quality, so that is the only consideration for selecting you or not selecting you. ठीक है, उसको छोड़ के आईसीएसआर मान लो जैसे आपको कहीं से और कोई फेलोशिप नहीं मिलता, तो आईसीएसआर एक दूसरा फेलोशिप देता है, उसको कहते हैं शॉर्ट टर्म डॉक्टरल फेलोशिप। वो 6 मंथ्स की फेलोशिप होता है, 6 मंथ्स की कंटीजेंसी होता है। आईसीएसआर का जो फेलोशिप है वो 20,000 पर मंथ है और 20,000 आपकी कंटीजेंसी है। ठीक है, so you get 20,000 as scholarship per month, 20,000 as contingency. Those who are employed, ICSR will not protect their pay for doctoral fellowship. ठीक है, पोस्ट डॉक्टरल में आपकी पे प्रोटेक्शन हो जाएगा, डॉक्टरल के लिए आपको यूजीसी से पे प्रोटेक्शन लेना पड़ेगा। ICSR doesn't protect the pay of the faculty if you are permanently employed. ठीक है, और अगर आपको कहीं से कोई और फंडिंग नहीं मिलता है and you are in the advanced stage of your research, you are about to submit your PhD thesis, ICSR gives also a small contingency grant of 50,000 rupees. ठीक है, 50,000 का एक कंटीजेंसी ग्रांट आईसीएसआर देता है जब आपको थीसिस जस्ट सबमिट करने वाले हो, जिसमें स्टेशनरी, टाइपिंग, बाइंडिंग, फाइंडिंग वो सब चीज़ कवर हो जाता है। ठीक है, तो ये जो डॉक्टरल फेलोशिप है ये मतलब जो है 2 साल के लिए मिलता है, 6 मंथ्स के लिए मिलता है और 1 टाइम कंटीजेंसी ग्रांट भी मिलता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा जब एडवर्टाइजमेंट होता है। ठीक है, दैट इज द टाइम यू हैव टू अप्लाई। ठीक है, सेकेंड जो फेलोशिप होता है दैट इज कॉल्ड पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप, फॉर व्हिच यू मस्ट बी पीएचडी अवॉर्डेड। ठीक है, डॉक्टरल फेलोशिप का जो एज लिमिट है वो 40 ईयर्स है, 5 ईयर रिलैक्सेशन फॉर रिजर्व कैटेगरीज। पोस्ट डॉक्टरल का फेलोशिप जो है दैट इज फॉर 45, 5 ईयर रिलैक्सेशन फॉर रिजर्व कैटेगरीज। ठीक है, पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप के लिए आपको पीएचडी अवॉर्डेड होनी चाहिए, एंड इट इज ए वेरी गुड फेलोशिप फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर्स। जो लोग असिस्टेंट प्रोफेसर है, उसका ड्यूरेशन होता है पोस्ट डॉक का, पीएचडी के आफ्टर 2 साल तक ही अप्लाई कर सकते हैं? नहीं, आप 5 साल तक अप्लाई कर सकते हो, नो इशू। ठीक है, पीएचडी होने के 5 साल तक आप अप्लाई कर सकते हो, इट्स नॉट एन इशू। पर 45 से आपकी एज लिमिट ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी हो तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। अगर आप अनएम्प्लॉयड हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। अनएम्प्लॉयड के लिए 31,000 का स्कॉलरशिप और 25,000 का कॉन्टीजेंसी का प्रोविजन है फॉर 2 ईयर्स। ठीक है, अगर आप एम्प्लॉयड हो तो आपकी पे प्रोटेक्शन हो जाएगा एज पर द यूजीसी रूल। इसको मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसीलिए दे रहा हूँ कि मान लो आपने मान लो जैसे आप पढ़ा के थक गए, बोर हो गए, और आप चाहते हो कि मैं 2 साल का रिसर्च ब्रेक लेके, छुट्टी लेके मैं जो है कहीं पे पीडीएफ करूँगा किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में, तो आप करोगे। सो यू विल गेट योर फुल पे प्रोटेक्टेड। आपकी
आपकी इंक्रीमेंट, आपकी सीनियरिटी, आपकी पोजीशन, सब कुछ प्रोटेक्ट होता है। ठीक है, उसके लिए आपको 3 कंडीशन पूरा करना है। फर्स्ट कंडीशन इज यू मस्ट बी रेगुलर एम्प्लॉय। ठीक है, जो एडहॉक में होते हैं, गेस्ट फैकल्टी होते हैं, वो सबका पे प्रोटेक्शन नहीं होता। तो पे प्रोटेक्शन के लिए यू मस्ट बी रेगुलर फैकल्टी, नंबर 1। सेकेंडली, यू मस्ट बी गेटिंग यूजीसी पे स्केल। जो यूजीसी से कम पे ले रहे हैं या ज़्यादा पे ले रहे हैं, उनका पे प्रोटेक्शन आईसीएसआर नहीं करता। थर्ड जो है, यू मस्ट बी एलिजिबल फॉर लीव। अगर आप प्रोबेशन में हो, कॉलेज वाले, यूनिवर्सिटी वाले छोड़ते नहीं है, तो इसीलिए आपको पूरा प्रोबेशन पूरा करके आपको जाना है। तो यू मस्ट बी एलिजिबल फॉर लीव। ये फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट है, इसीलिए आप इसके दौरान कोई और एम्प्लॉयमेंट, टीचिंग फीचिंग आप कुछ नहीं करोगे। यू विल एक्सक्लूसिवली डिवोट योर टाइम फॉर पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च। इसमें एक खास बात ये है कि अगर आप एसोसिएट प्रोफेसर के लिए भरते हो तो आपकी 3 साल की टीचिंग एक्सपीरियंस है, 2 साल के आईसीएसआर का रिसर्च एक्सपीरियंस होगा, तो काउंट होगा। तो 5 साल पूरा हो गया, इधर टीचिंग और रिसर्च और बोथ। ठीक है, तो इसको, ये फेलोशिप लेके आपको एक एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलेगा। ये नहीं कि आपको इसकी वजह से कोई नुकसान होगा। और पे जैसे मैं बताया, एवरीथिंग वट एवर यू गेट, यू विल गेट इट फ्रॉम आईसीएसआर प्लस 2 years contingency of 50,000 rupees, which you can use for your रिसर्च एक्सपेंसेस। ठीक है, रिसर्च पर्पस के लिए आप आईसीएसआर का कॉन्टीजेंसी को यूज करोगे, उसको छोड़ के 2 साल का पूरा पे, पूरा अलाउंसेस, वो सब चीज़ आपको मिलेगा, इंक्लूडिंग आपकी सीनियरिटी प्रोटेक्ट होगा, आपकी इंक्रीमेंट प्रोटेक्ट होगा, सब कुछ आपका प्रोटेक्ट होगा। कोई भी एक रुपये का आपका नुकसान नहीं होगा। बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, इसीलिए वो कंफ्यूज होते हैं और सोचते हैं कि भाई आईसीएसआर चले जाएंगे, आईसीएसआर फेलोशिप में हमें कोई निकाल देगा, हमारी पे प्रोटेक्ट नहीं होगा, हमारी सीनियरिटी काउंट नहीं होगा, हम जूनियर हो जाएंगे, हमें नौकरी से निकाल। सो देयर आर लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स, कंफ्यूजन्स। So that to remove those confusions one for all, so I suggest that you can seriously तो think जिनका of। पहले से हो चुका है उनको भी इसका लाभ मिलेगा? नहीं, दोबारा नहीं, एक बार पोस्ट डॉक आपने कर लिया बहुत। नहीं सर, प्रमोशन में। प्रमोशन मतलब कैसे बता? सर जैसे असिस्टेंट से एसोसिएट होना है तो क्या ये लाभ उनको मिलेगा जो पहले से ही जॉब के बिल्कुल पहले से मिलेगा, ही हैं? बिल्कुल। और सर क्या ये पीएचडी का टॉपिक और पोस्ट डॉक का ये एक होना चाहिए या अलग हो नहीं सकता नहीं, है? अलग होनी चाहिए। एक अगर आपने किया तो फिर तो वो कॉपी पेस्ट हो जाएगा ना, तो इसीलिए नहीं, आप, स्पेशलाइजेशन वही होना चाहिए या कुछ भी हो सकता है? नहीं कुछ भी नहीं होगा। आप एक ही एरिया में स्पेशलाइज करो। अगर कोई मलेरिया एराडिकेशन के बारे में पीएचडी किया है तो हाइड्रोजन के बम के बारे में कैसे पीडीएफ कर लेगा? सेम ये एरिया सर जैसे मैं एजिंग पे कर रही हूँ सर, उसी से रिलेटेड दूसरा भी आप कर रिलेटेड सकती हूँ। एरिया में कर सकते हो। अगर पीएचडी आपने जिस एरिया में, मान लो एजिंग पॉपुलेशन के ऊपर आपने पीएचडी किया है, माइग्रेशन के ऊपर, एजिंग के ऊपर आप जो है पीडीएफ कर सकते हो, वो रिलेटेड है। ठीक है, इतना भी चेंज नहीं होना चाहिए और सेम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। एक्सक्यूज मी सर। सर अभी तो हेमंती नंदन बहुगुणा में अप्लाई किया गया था तो उसको काउंट नहीं किया गया है सर। हम लोग ने किया था सर, पीडीएफ कर चुके हैं सर। मतलब सर नहीं काउंट किया गया है वहाँ पे एसोसिएट के लिए। देखिए, हेमवती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी जो है वो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, यस या नो? जी यस सर, यस। तो स्टेट, देखिए मतलब कोई माने ना माने, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का 100% मानना चाहिए। नहीं करते हैं, दैट्स ए वायोलेशन ऑफ यूजीसी रूल। और आप उनको पूछ सकते हो, आप आरटीआई करके पूछ सकते हो, आपने नहीं माना तो किस ग्राउंड पे माना नहीं, तो वो लोग फंस जाएंगे सर। आप समझ रहे हैं? तो ये थोड़ी मजाक है। इंटरव्यू के लिए उन्होंने नॉट फॉर सुटेबल दे दिया है इसी के आधार पे। नहीं, नॉट ऐसा है, वो तो इंटरव्यू के दौरान कर सकते हैं, बट दैट इज नॉट ऑन द बेसिस ऑफ योर पीएचडी या पीडीएफ, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ रिसर्च परफॉर्मेंस। अगर वो किसी को लेना नहीं चाहते हैं तो नॉन फाउंड सुटेबल करके लिख देते हैं, वो एक अलग इशू है। नहीं सर, इंटरव्यू के लिए ही कॉल नहीं किया उन्होंने एनएफएस ऐसा ना, देयर में भी सम अदर क्राइटेरिया। तो आप अगर जानना चाहते हो उनको आरटीआई करके पूछ लो कि आपने किस क्राइटेरिया के बेसिस पे लोगों को शॉर्टलिस्ट किया है और मेरे को नहीं किया था, किस ग्राउंड पे नहीं किया, दैट्स ऑल। अगर वो लिख के देते हैं कि आपका पीडीएफ को हमने माना नहीं है तो फिर वो फंस जाएंगे अच्छे से। सर जैसे सर मैं दिनेश कुमार सिंह सर, एक केस ऐसा है बीएचयू में, बहुत ज्यादा केस आ गया है। विज्ञापन संख्या सर 47 के साथ है कि बहुत सारे बच्चे पीएचडी कर रहे थे जिनकी जॉब लग गई, जैसे उसमें मैं भी हूँ। तो सर अभी वहाँ पे 3 साल प्रोविजन पीरियड नहीं पूरा हुआ था। अब चूंकि हम लोग यहाँ पे ज्वाइन किए तो अब यहाँ पे भी 3 साल का स्थायीकरण का मामला फंसा हुआ है। कॉलेज से आपको छुट्टी मिली नहीं, तो जब यहाँ से हम जाएंगे तो क्या तो आपको विथ पे जाएंगे या विदाउट पे जाएंगे? देखिए, आपको जो है मैंने ब्रॉड गाइडलाइंस बता दिया कि आईसीएसआर का ये रूल है
कुछ लोग उसको मानते हैं, कुछ लोग उसको सिलेक्टिवली मानते हैं, कुछ लोग उसको नहीं मानते हैं। ये तो उस कॉलेज का, यूनिवर्सिटी की प्रॉब्लम है, उसके लिए आईसीएसआर का कोई सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। बट मैंने आपको ब्रॉडली बता दिया कि अगर आप आईसीएसआर एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंस्टीट्यूट है, ये किसी का कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन नहीं है कि कोई सोचे, दोबारा सोचे कि हम काउंट करें ना करें, ठीक है। यूजीसी को आईसीएसआर फॉलो करता है, आईसीएसआर को यूजीसी फॉलो करता है। तो इसीलिए ये, क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर डायरेक्टली आता है, तो इसका रूल्स रेगुलेशन को सभी के लिए कंपलसरी है। अगर कोई नहीं मानता है, वो लोग तो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, तो आप उनको अपनी तरफ से हैंडल कर सकते हैं। उसके लिए आईसीएसआर आपका कुछ नहीं कर सकता। नहीं सर, मैं ये आपको आईसीएसआर के लिए नहीं कह रहा हूँ सर। बीएचयू में अगर हमको फिर से पीएचडी करने जानी हो तो 6 महीना जो रेसिडेंशियल है उसको तो पूरा करना ही पड़ेगा। वो तो पार्ट टाइम में ये आप देखिए, वो सब आपकी यूनिवर्सिटी का रूल को आपको फॉलो करना है। अगर आपको पार्ट टाइम करना है, 6 महीना का रेसिडेंशियल करना, वो जो आपकी यूनिवर्सिटी का रूल होगा आपको उसको फॉलो करना है। सर मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए वहाँ पे हमको अगर आपको मिल जाता है टाइम, मतलब आपको पीएचडी करने के लिए, तो कॉलेज से क्या मैं विदाउट पे जाऊंगा या आपको विथ पे जाऊंगा? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। विथ पे अगर जाओगे तो उसमें आपको यूजीसी को अप्लाई करना पड़ेगा फॉर पे प्रोटेक्शन। अगर आपका यूजीसी पे प्रोटेक्शन करता है तो विथ पे आप छुट्टी लेके जा सकते हो। अगर यूजीसी ने पे प्रोटेक्शन नहीं दिया तो आप विदाउट पे में पीएचडी करने जा सकते हो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो ये ठीक है, ये पीडीएफ जो है आपका, मतलब आप असिस्टेंट प्रोफेसर हो तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। दैट इज द बेस्ट वन फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। अनएम्प्लॉयड लोग जिनको नौकरी नहीं मिली है वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। 45 साल उसकी एज लिमिट है और रिजर्व कैटेगरी के लिए 5 ईयर की रिलैक्सेशन है। ये एक बहुत अच्छी स्कीम है जिसमें आप कंसिडर कर सकते हो। पीएचडी और पीडीएफ आप किसी सुपरवाइजर के अंडर करना पड़ता है, इसीलिए आप जब ऑनलाइन अप्लाई करते हो उसकी प्रिंट आउट लेके सुपरवाइजर का कंसेंट और उसकी बायोडाटा के साथ आपको प्रॉपरली फॉरवर्ड करके एप्लीकेशन भेजना है, ठीक है। तो ये कंडीशन आपके पीडीएफ के लिए। थर्ड फेलोशिप इज कॉल्ड सीनियर फेलोशिप। जब आप लोग अगर बीच बीच में क्वेश्चन पूछोगे, मैं आगे नहीं पढ़ा पाऊंगा, हमारी टाइम हो चुका है, ठीक है। 20 मिनट रह गया तो मैं फिर फंडिंग नहीं बता पाऊंगा, फिर मैं क्वेश्चन आंसर कर दूं। नो सर, नो सर, नहीं सर, और फंडिंग बता दीजिए पहले। आप फिर मुझे कंटिन्यू सर। बीच में आप ऐसा ना, बीच में पूछोगे तो मैं चीज जो चाहता हूँ बताने के लिए आपको टाइम ही नहीं मिलेगा। मैं एनीवे, तो जो थर्ड फेलोशिप है दैट इज कॉल्ड सीनियर फेलोशिप। जब आप एसोसिएट प्रोफेसर हो जाओगे तो आप उसके लिए एलिजिबल हो जाओगे। तो उसकी एज लिमिट 45 to 70 है, तो आप 45 के बाद आप उसको अप्लाई कर सकते हो। और जब एसोसिएट प्रोफेसर हो जाओगे या प्रोफेसर हो जाओगे या रिटायर्ड फैकल्टी हो तो भी आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। इसकी स्कॉलरशिप जो है 45,000 पर मंथ है, कंटीजेंसी 40,000 का है। अगर आप एम्प्लॉयड हो आपकी पे प्रोटेक्शन हो जाएगा, प्लस 2 साल की कंटीजेंसी आपको मिल जाएगा। इसमें ये खास बात है कि आपको इंडिपेंडेंटली आप कर सकते हो, इसके लिए आपको किसी सुपरवाइजर के अंडर काम करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। लास्ट इज कॉल्ड नेशनल फेलोशिप, जिसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा नहीं, क्योंकि वो सब चीज़ों के लिए अभी आप एलिजिबल नहीं हो, वो 70 साल के बाद होता है। इसीलिए आप लोग ये तीनों फेलोशिप के ऊपर कंसंट्रेट कर सकते हो, डॉक्टरल फेलोशिप, पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप एंड सीनियर फेलोशिप। तीसरा जो आईसीएसआर का मेजर फंडिंग है दैट इज कॉल्ड इंटरनेशनल कोलैबोरेशन ग्रांट, जिसमें 3 प्रकार का फेलोशिप आता है। एक आता है पेपर प्रेजेंटेशन के लिए, आपको आईसीएसआर जो है ट्रैवल ग्रांट देता है। सो यू गेट ट्रैवल ग्रांट फॉर प्रेजेंटिंग पेपर इन एन इंटरनेशनल सेमिनार और कॉन्फ्रेंस, ठीक है। जैसे मान लो इंडिया के बाहर जितने सारे कॉन्फ्रेंस होता है, सेमिनार होता है, तो उसमें आप पेपर प्रेजेंट कर सकते हो, जिसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है कब आपको अप्लाई करना है। तो आपका जब मन करे तब अप्लाई कर सकते हो। बट एक चीज़ का ध्यान आपको रखना है कि 3 महीना पहले, जाने का 3 महीना पहले आपका एप्लीकेशन आईसीएसआर में आ जाना चाहिए, ठीक है। उसके लिए आपको इनविटेशन लेटर, कॉन्फ्रेंस जो पेपर प्रेजेंट करोगे वो पेपर, कंप्लीट पेपर, उसके एब्स्ट्रैक्ट, एक टेंटेटिव बजट और एक कॉन्फ्रेंस की ब्रोचर होनी चाहिए, जिसमें कहाँ कॉन्फ्रेंस हो रहा है, कौन सा देश में हो रहा है, कौन सी डेट को हो रहा है, वो सब, रजिस्ट्रेशन फी क्या है, वो सब चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो ये धर्मेंद्र सिंह, ये प्लीज म्यूट कर दें, इसमें डिस्टर्बेंस आ रहा है। तो ये आप कर सकते हो। तो ये चीज़ों को आप भेज के आईसीएसआर मतलब अप्लाई कर सकते हो ट्रैवल ग्रांट के लिए। तो ये इस चीज़ों में आपको आईसीएसआर जो है आपको एयर फेयर, आपकी होटल, आपकी रजिस्ट्रेशन, आपकी वीजा फी, आपकी इंश्योरेंस, सारे खर्चा जो है आपका आईसीएसआर बियर करेगा, ठीक है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्कीम है। तो आप कहीं पे अगर पेपर प्रेजेंट वगैरह करना चाहोगे तो उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो।
दूसरा जो है वो है ग्रांट फॉर डेटा कलेक्शन। अगर आप ऐसा कोई एरिया में काम करते हो जिसके लिए आपको किसी फॉरेन कंट्री जाके डेटा कलेक्ट करना हो तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो 15 दिन से लेकर 1 महीना तक आप किसी भी कंट्री जाके डेटा कलेक्ट कर सकते हो, अगर वहां से डेटा कलेक्ट करना आपकी स्टडी के लिए जरूरी है तो। ठीक है, तो ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्कीम है, तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। तीसरा जो है दैट इज कॉल्ड कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम। दैट कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम इज मीन फॉर 1 month to 3 months। आईसीएसआर का 14 कंट्रीज के साथ कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम का एग्रीमेंट है। तो आप अगर उन 14 कंट्री में से कोई भी कंट्री को जाना चाहते हो एज ए विजिटिंग फेलो, तो कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम के अंडर आप अप्लाई कर सकते हो। 1 month to 3 months आप जाके वहाँ लेक्चर दे सकते हो, मटेरियल कलेक्शन कर सकते हो, जॉइंट रिसर्च प्रोजेक्ट एक्सप्लोर कर सकते हो, जॉइंट पब्लिकेशन एक्सप्लोर कर सकते हो। तो ये सब काम के लिए आप कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम के अंडर जा सकते हो। ठीक है, तो ये तीनों चीज है, पेपर प्रेजेंटेशन, डेटा कलेक्शन और कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम, ये तीनों इंटरनेशनल कोलैबोरेशन ग्रांट के अंदर आता है। ठीक है, नेक्स्ट इज योर सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंस ग्रांट। अगर आप अपनी कॉलेज में यूनिवर्सिटी में कोई अच्छे सेमिनार करना चाहते हो, नेशनल सेमिनार या इंटरनेशनल सेमिनार, यू कैन ऑर्गेनाइज दैट सेमिनार एंड आईसीएसआर विल प्रोवाइड ए ग्रांट ऑफ 5 लाख रुपीज फॉर नेशनल सेमिनार, 10 लाख रुपीज फॉर इंटरनेशनल सेमिनार। ठीक है, तो आप अगर अपनी कॉलेज में यूनिवर्सिटी में कोई सेमिनार करोगे तो उसके लिए भी आईसीएसआर आपको ग्रांट देता है 5 लाख फॉर इंटरनेशनल, 5 लाख फॉर नेशनल, 10 लाख फॉर इंटरनेशनल सेमिनार। डेडलाइन कोई भी नहीं है, आपको जब मन करे तब अप्लाई करना, बट यू अप्लाई बिफोर 3 months ऑफ द एक्चुअल सेमिनार डेट। ठीक है, नेक्स्ट इज कॉल योर ट्रेनिंग एंड कल्चरल एक्सचेंज, ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम। ठीक है, जिसमें आप चाहें तो आप अपनी यूनिवर्सिटी में पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए रिसर्च मेथोलॉजी वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कर सकते हो या फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज कर सकते हो। ठीक है, पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए अगर रिसर्च मेथोलॉजी वर्कशॉप आप ऑर्गेनाइज करोगे उसके लिए आईसीएसआर 5.5 लाख, और अगर आप टीचर्स के लिए एफडीपी प्रोग्राम करोगे तो उसके लिए 8 लाख रुपया आईसीएसआर आपको ग्रांट देता है। ठीक है, तो ये चीज भी आप अपने कॉलेज में यूनिवर्सिटी में कर सकते हो। खाली कॉलेज में आईसीएसआर ग्रांट नहीं देगा, तो कॉलेज वालों को यूनिवर्सिटी के साथ टाई अप करके आपको पीएचडी का रिसर्च मेथोलॉजी वर्कशॉप या एफडीपी प्रोग्राम वगैरह आपको ऑर्गेनाइज आप कर सकते हो। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग स्कीम है। तो इसके लिए कोई डेडलाइन नहीं है, जब आपको करना हो तब आप 3 महीना पहले उसके एप्लीकेशन आपको आईसीएसआर भेजना चाहिए। ठीक है, लास्ट है पब्लिकेशन ग्रांट। अगर आप कोई बुक पब्लिश करना चाहते हैं जिसके लिए आपको पैसा की जरूरत पब्लिशर को देना है या जरूरत है, तो आप ऐसे मतलब उसके लिए भी आप आईसीएसआर का पब्लिकेशन ग्रांट ले सकते हो, जिसमें आईसीएसआर लमसम 50,000 रुपीज जो है पब्लिशर को देता है टू गेट योर वर्क पब्लिश्ड। इन केस यू वांट टू रिवाइज योर पीएचडी थीसिस एंड पब्लिश दैट इन ए बुक फॉर्म, या आप कोई सेमिनार कॉन्फ्रेंस किए उसकी कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स को छापोगे, या आपने कोई रिसर्च प्रोजेक्ट या फेलोशिप किया उसका रिपोर्ट को पब्लिश करोगे। सो फॉर ऑल दिस पर्पसेस यू कैन डू दैट, एंड दैट इज a good scheme for this, right? Give me just a minute, right? Just give. Participants are requested to please open your videos. आप अपनी वीडियो ऑन करिए सर, बार बार कह रहे हैं आप वीडियो नहीं ऑन कर रहे हैं, अपना वीडियो ऑन करिए ना। Okay, sir. If you are in the class, you should open your videos. Okay. Yes, I'm back. So I was saying that in case you want to publish your PhD thesis on a research report or a project report, or even if you can organize some conference, you can get your conference proceedings published as a book, and for that ICSR gives you 50,000 lump sum rupees to get your work published. ठीक है, इसका भी कोई डेडलाइन नहीं है, जब मन करे तब अप्लाई कर सकते हो। बट इस चीज का ध्यान रखना है कि जब भी आप अप्लाई करोगे कम से कम 3 months आपको आईसीएसआर को देना है टू गेट योर वर्क एग्जामिन। ठीक है, अभी मैं यहीं पे स्टॉप हो रहा हूं। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन, मैंने जो चीज बताया, अगर उससे कोई आपको डाउट से कोई क्लैरिटी आप चाहते हो तो आप मुझे पूछ सकते हो 1 by 1, एक साथ सभी लोग नहीं पूछना। ठीक है, पूछो। पर मेरा एक ये क्वेश्चन सेमिनार के लिए क्या पीएचडी होना जरूरी होता है क्या? मतलब अगर हम अपने कॉलेज में कोई कॉन्फ्रेंस नो सर, मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। हाँ, पूछिए सर, मैंने 2019 के नवंबर में ज्वाइन किया था असिस्टेंट प्रोफेसर के हिसाब से।
और मैंने 1 साल के अंदर ACRB DST ACRB का एक स्टार्टअप रिसर्च ग्रांट 20 लाख का मैंने मुझे मिला था एज PI, जो कि मेरा 24 जनवरी में खत्म होने वाला है। अब मैं नेक्स्ट एक मेजर प्रोजेक्ट फिर से सबमिट करना चाहता हूँ, बट मुझे पता नहीं है कि UGC अभी कोई मेजर प्रोजेक्ट दे रहा है कि नहीं दे रहा है, क्योंकि बीच में बहुत साल बंद था। UGC ने, पहले मैं क्लैरिफाई कर दूं, UGC हैज स्टॉप्ड गिविंग रिसर्च प्रोजेक्ट्स। UGC के जगह पे अभी ICSR फंडिंग कर रहा है। सर मैं बॉटनी से हूँ, बायोलॉजिकल साइंसेस से, तो मेरे लिए अभी सूटेबल क्या है? You can apply to CSR or Ministry of Science and Technology, और ICSR में जॉइंट प्रोजेक्ट भी आप अप्लाई कर सकते हो। ओके सर, एक प्रश्न मेरा है सर, जो सेमिनार के लिए प्रपोजल हम लोगों ने भेजा था, तो क्या मतलब उसी प्रपोजल को फिर मैं दोबारा भेज सकता हूँ कि फिर से नया प्रपोजल बनाना किस वजह से सेमिनार के लिए भेजा, में ही अप्लाई किया गया था? जैसे सर वो कंसीडर नहीं हुआ आपका सर। क्वेश्चन था, तो आप उसको रिवाइज करके दोबारा सेमिनार के लिए भेज सकते हो। उसी टॉपिक को, सेम टॉपिक को भेज सकता हूँ सर, कि मतलब वो टॉपिक में चेंजेस करने पड़ेंगे। एक मिनट, जब उसका सिलेक्शन नहीं हुआ उस टॉपिक के ऊपर, आप दोबारा क्यों उसको भेजोगे? आप उसको थोड़ा मॉडिफाई करो, थोड़ा बेटर उसको क्वालिटी करो, फिर भेजो। सर उससे बेकार क्वालिटी का एक्सेप्ट हुआ है सर ICSR में, इसलिए थोड़ा सा अजीब देखो, लगता ये है। सब चीजों का मेरे पास कोई, देखिए मेरे पास उसकी कोई आंसर नहीं है। आपसे ज्यादा क्वालिफाइड लोग अनएम्प्लॉयड होंगे, आप एम्प्लॉयड हो, ये भी हो सकता है ना? नहीं, मेरे से ज्यादा क्वालिफाइड लोग अनएम्प्लॉयड हो, मैं ये भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? तो इसीलिए ये सब चीजों का देखें, मेरे पास कोई आंसर नहीं है। मैं सिर्फ आपको एनकरेज कर सकता हूँ कि आप अच्छे से मेहनत करिए। अगर एक बार नहीं हुआ दोबारा अप्लाई करिए, मैं इतना कह सकता हूँ। किसका हुआ नहीं हुआ उसके कारण वो सब मैं बता नहीं सकता। सर ICSR साइंस भी फंडिंग करती है क्या? हैं? ICSR साइंस सब्जेक्ट के लिए फंडिंग करती है? सबके लिए। मैंने पहले से कहा कि ट्रांसडिसिप्लिनरी रिसर्च के लिए आजकल सभी फंडिंग काउंसिल फंडिंग करते हैं। तो अगर आप साइंस का हो तो किसी टॉपिक ऐसे लो जिसमें आप किसी सोशल साइंटिस्ट को इंक्लूड कर सकते हो, किसी और को इंक्लूड कर सकते हो। आज ए रिसर्च टीम बना के आप ऐसे टॉपिक पे अप्लाई करो जो ट्रांसडिसिप्लिनरी हो, और उसमें आपकी फंडिंग हो जाएगा। खाली आप लैब बेस्ड अगर रिसर्च करोगे तो ICSR उसके लिए फंडिंग नहीं करेगा। आपको फील्ड बेस्ड आपकी लैब बेस्ड नहीं होगा, मेरा स्टैटिस्टिक्स है, उसमें लैब की आवश्यकता नहीं, सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। आराम से तो आप आराम से कर सकते हो, और किसी को आप इंक्लूड करो, और अच्छे टॉपिक जो प्रैक्टिकल, जिसका एप्लीकेशन ओरिएंटेड टॉपिक हो। मतलब ICSR चाहते हैं आप अपने लैब से थोड़ा फील्ड की तरफ जाएं, लोगों से मिले, और ऐसे टॉपिक पे काम करें जिससे कंट्री को, पॉलिसी कम्युनिटी को फायदा हो। बस ये फिर क्वेश्चनर डेवलप करके हम लोग काम करते हैं, आराम से कर सकते हो आप। Sir, I have a question. Excuse me, sir. Hello. Sir, as I am employed, so sir, can I apply for ICSR travel grant? 100% आप कर सकते हो। अनएम्प्लॉयड हो तो भी कर सकते हो, एम्प्लॉयड हो तो भी कर सकते हो। Thank you so much. Excuse me, sir. Thank you. हाँ बताएं। Hello sir. What is difference between DLIT and postdoctoral degree? DLIT and postdoctoral degree? Both are same or? नहीं, दोनों सेम नहीं है। DLIT का फुल फॉर्म आप जानते हो? डॉक्टर ऑफ लेटर्स। डॉक्टर ऑफ लिटरेचर। डॉक्टर ऑफ लेटर्स। लिटरेचर नहीं, डॉक्टरेट इन लेटर्स। ठीक है, लेटर्स होता है डॉक्टरेट इन लेटर्स। डॉक्टरेट इन लेटर जो है, जब आप पूरा मतलब बहुत काम कर लिया, बहुत अच्छे रिसर्च कर लिया, रिसर्च पब्लिकेशन कर दिया, सो DLIT इज गिवन बाय ए यूनिवर्सिटी इन रिकॉग्निशन टू द कंट्रीब्यूशन यू मेड टू द एरिया ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च। PDF होता है जो आप PhD के बाद करते हो। PDF इज नॉट ए डिग्री, यू डू सम रिसर्च। ऐसा डिग्री तो होता है PhD तक, उसके बाद कोई डिग्री नहीं होता। सबको सब they are all given in recognition to your research contribution, but they are all funded for doing some research. PDF जो है PhD के बाद करते हो। डिग्री जब बाल सफेद हो जाता है, बहुत अच्छे काम कर लिया, तब आप डिलीट कर सकते हो। सर DSc सर भाई मेरे, ये सब चीज मेरे को आप क्यों पूछ रहे हो? आप तो नेट में भी सर्च करके, गूगल में सर्च करके पढ़ सकते हो। आप मेरा नॉलेज को टेस्ट कर रहे हो ना, सचमुच जानना चाहते हो? नो सर, आई हैव इनएडिक्वेट नॉलेज। आप मोबाइल में मेरी बात सुन के, जब मेरा लेक्चर खत्म हो जाएगा, गूगल में सर्च करो। ये सब चीजों के लिए आप मुझे पूछ रहे हो, टाइम क्यों खराब करेंगे? आप मुझसे वो सब चीज पूछो जो क्वेश्चन था सर। हाँ, सर क्वेश्चन था सर, सेमिनार के
ग्रांट लेने के लिए हमको पीएचडी होना जरूरी है क्या? नहीं, जरूरी नहीं है, पीएचडी नहीं है। सेमिनार तो कोई और लोग बुलाओगे, आप तो इवेंट मैनेजमेंट करोगे, उसके लिए पीएचडी की कोई जरूरत नहीं है। जब रिसर्च प्रोजेक्ट करोगे या फेलोशिप लोगे तब उसके लिए आपको पीएचडी होना जरूरी है। सर एक बार सर मैंने बाईलॉज देखे थे, तो उसमें को कन्वीनर को पीएचडी होना कंपलसरी बता रहे थे। आईसीएसआर का नहीं है, आईसीएसआर का तो नहीं है सर, चेंजेज होते रहते सर हैं। सर मेरा एक क्वेश्चन है। बताए सर, कोलैबोरेटिव रिसर्च फेलोशिप के लिए जो हम कोलैबोरेट करेंगे वो किसी और यूनिवर्सिटी से कोई और प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर हो सकते हैं? वो किसी और यूनिवर्सिटी से हो सकता है, सेम यूनिवर्सिटी से डिफरेंट डिपार्टमेंट से हो सकते हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी का हो सकता है, कॉलेज आईआईटी का हो सकता है, किसी से हो सकता है। अच्छा, ओके, थैंक यू। हमें पीएचडी करनी है, और पीएचडी करनी है तो हमारा प्रोबेशन पूरा हो चुका है, तो क्या हमें फुल पे मिल सकता है या विदाउट पे लीव लेनी पड़ेगी? आप पीएचडी कर चुके हो और क्या करना चाहते हो? नहीं सर, मैं पीएचडी करना चाहता हूँ, मेरा प्रोबेशन पीरियड पूरा हो चुका है, तो मैं ये विद पे कर सकता हूँ या विदाउट पे कर सकता हूँ? आप विद पे कर सकते हो। जब आपकी प्रोबेशन पीरियड खत्म हो चुका है तो पीएचडी आपका कितने साल हो गया? नहीं, पीएचडी मैंने अभी किया नहीं है, मैं तो अभी अप्लाई करना है मुझे सर। तो नहीं, आपकी प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट हो गया ना? जी सर, हो तो गया। अभी आप छुट्टी के लिए एलिजिबल हो गए, तो किसी का पहले पे प्रोटेक्शन का के लिए अप्लाई करो। अगर यूजीसी ने पे प्रोटेक्ट कर दिया तो विथ पे जाओ, अगर यूजीसी नहीं करेगा तो विदाउट पे जाओ, दैट्स ऑल। मैंने सर आगरा यूनिवर्सिटी में डाला था, रिटन मेरा क्लियर हुआ था, हम काउंसलिंग के लिए गए तो उन्होंने हमसे कह दिया कि अब आपकी यूनिवर्सिटी जो है राजा महेंद्र प्रताप जो स्टेट यूनिवर्सिटी बनी है वो हो गई है, आपका कॉलेज उससे सम्मत हो गया है, तो अब हम आपको कंसीडर नहीं करेंगे। तो क्या उनका सही था ये बात? नहीं, उससे कोई मतलब नहीं। इसका मतलब थोड़ी है कि मेरा कॉलेज जिस यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है सिर्फ मैं वहीं कर सकता हूँ। मैं जेएनयू में करूंगा, जेएनयू के अंडर तो कोई कॉलेज है ही नहीं। वो कोई भी पीएचडी किसी भी यूनिवर्सिटी में करेगा, उसके लिए कोई कॉलेज की कंडीशन, रेसिडेंशियल कंडीशन नहीं होता जी। उसके लिए हमें यूजीसी से मतलब पे प्रोटेक्शन लेना पड़ेगा। हाँ, तो आपका यूजीसी का पे प्रोटेक्शन जो बेनिफिट होता है, जो इन सर्विस नॉन पीएचडी कैंडिडेट होते हैं उनको यूजीसी पे प्रोटेक्शन करता है, तो आप उसको अप्लाई करो। और उसके लिए आपको जहाँ पे आप पीएचडी कर रहे हो तो वो उसका इंफॉर्मेशन देके आप जब एप्लीकेशन भेजोगे तब वो आपकी पे प्रोटेक्शन कंसीडर करेंगे। अगर उन्होंने पे प्रोटेक्शन कर दिया तो आप पे स्कॉलरशिप लेके पे प्रोटेक्शन बेनिफिट लेके आप काम करो। नहीं किया तो आपके पास तो ऑप्शन है, छुट्टी लेके जाओ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव लेके जाओ विदाउट पे। ओके सर। सर मेरा एक और सवाल है। बताए। टीआईएफआर या डीआरडीओ या लाइफ साइंस या बायोलॉजिकल साइंस के लिए अभी फंडिंग कर रही है क्या? मैंने बताया सारे, चाहे डीआरडीओ हो चाहे सीएसआईआर हो, आजकल आईसीएसआर भी हो, टीआईएफआर। मैं वही कह रहा हूँ कि आप आजकल देखो कि कुछ रिसर्च प्रोजेक्ट वगैरह के लिए वो लोग पहले से टॉपिक पर भेज देते हैं कि भाई हमें ये टॉपिक पर रिसर्च प्रपोजल चाहिए, ठीक है। कुछ होते हैं जो आपके ऊपर छोड़ देते हैं कि आप अपना टॉपिक डिसाइड करके भेजिए, ठीक है। आप उनकी वेबसाइट पहले विजिट करो, क्या जो एरिया में आप काम करना चाहते हो वो उस एरिया को বা उस टॉपिक में उन्होंने कोई स्पेशली मेंशन किया है, नहीं किया तो आप अपने आप करके भेज दो। आपके पास दो ऑप्शन है। अगर वो कुछ लोग टॉपिक आइडेंटिफाई करते हैं और फिर इनवाइट करते हैं, कुछ लोग कहते हैं नहीं आप अपने आप जो टॉपिक सिलेक्ट करना है करके भेज दीजिए, वी विल कंसीडर, ठीक है। तो आप मल्टीडिसिप्लिनरी या इंटरडिसिप्लिनरी के लिए जो डीबीटी बोल्डर या डीबीटी स्टार्ट जो होता है वो भी क्या हम लोग अप्लाई कर सकते हैं कॉलेज में? कर सकते हैं, आप आराम से कर सकते हैं। ऐसा ना, दैट इज जस्ट ए रिसर्च अप्रोच, वो कोई कंडीशन नहीं है। मल्टीडिसिप्लिनरी होना या ट्रांसडिसिप्लिनरी होना वो एक रिसर्च अप्रोच है, आपको उसको फॉलो करना है, दैट्स ऑल। उसमें और कोई कंडीशन नहीं है। और मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ क्योंकि रिसर्च की दुनिया में आजकल लोग मल्टीडिसिप्लिनरी से ट्रांसडिसिप्लिनरी तरफ जा रहे हैं, तो इसीलिए ये सही रहेगा कि अगर आप ऐसा टॉपिक कोई चूज करोगे जिसका कोई मतलब ट्रांसडिसिप्लिनरी फोकस होगा, वो इजीली फंडेड हो जाता है, बस। थैंक यू। और किसी को कुछ पूछना है? नहीं तो मैं 10 मिनट का ब्रेक ले लेंगे। सर मुझे पूछना है क्वेश्चन। बताए। सर कोई अगर पोस्ट डॉक करना चाहे तो उसके लिए अगर कहीं भी शायद बाहर भी हो, जहाँ पे भी हो, उसके लिए क्या वो पे प्रोटेक्शन उसको मिलेगा?
नहीं, बाहर आप जाओगे तो पे प्रोटेक्शन आपको नहीं मिलेगा। अगर आप इंडिया के अंदर करोगे, पीएचडी करोगे, तो आपको यूजीसी से पे प्रोटेक्शन मिलेगा। बाहर अगर जाओगे तो आपको तो वहाँ स्कॉलरशिप वगैरह मिलेगा, तो यहाँ पे अब आपको नहीं मिलेगा। अच्छा, ठीक है सर। मतलब आप कोशिश करो वहाँ पे पीएचडी करने के लिए जहाँ पे कोई फेलोशिप मिलेगा, क्योंकि आपकी यहाँ पे सैलरी नहीं मिलेगा, वहाँ आपको मेंटेन करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए आप वहीं पे पीएचडी करो जहाँ पे आपको कोई स्कॉलरशिप वगैरह मिलेगा। सर पोस्ट डॉक के मामला क्या है? पोस्ट डॉक के लिए आपको जो है, अगर आप पोस्ट डॉक के लिए पहले तो पे प्रोटेक्शन है होगा नहीं। अगर आप इंडिया के बाहर करोगे तो एक है कॉमनवेल्थ फाउंडेशन, एक है आपके फुलब्राइट फेलोशिप, एक है आपकी एंडेवर फेलोशिप। तो ये कॉमनवेल्थ जो है वो यूके गवर्नमेंट देता है, फुलब्राइट जो है यूएसए इंडिया देते हैं, और जो एंडेवर होता है ये ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट देता है। तो आप ये फेलोशिप को अप्लाई करके पीडीएफ के लिए जाते हैं। अगर वो पे प्रोटेक्शन ना भी मिले, वो जाने के तो लिए आपको स्कॉलरशिप जितना मिलेगा उतना काफी है। पे प्रोटेक्शन नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, आपको तो पैसा नहीं, ऑलरेडी वो भी बात नहीं, जाने के लिए टाइम वक्त तो दिया जाएगा। वक्त मतलब 2 साल का आपको छुट्टी लेना पड़ेगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव जिसको कहते हैं। अच्छा, उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव्स कहते हैं। हाँ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव का मतलब लीव विदाउट पे। तो आपको बिना पे में गवर्नमेंट की प्रोविजन है ऐसा ना। देखो, पहले आप छुट्टी लेने के लिए पहले आप कंफर्म एम्प्लॉय होनी चाहिए। 2-3 चीज आप पूरा गांठ बांध लो। यू मस्ट हैव कंप्लीटेड योर प्रोबेशन। कोई भी कॉलेज यूनिवर्सिटी प्रोबेशन के अंदर छुट्टी नहीं देता। प्रोबेशन कहीं पे 1 साल हो सकता है, 2 साल हो सकता है। तो आप उसको उस पीरियड को कंप्लीट करो, देन यू बिकम ए कंफर्म एम्प्लॉय ऑफ द कॉलेज और यूनिवर्सिटी एंड देन यू आर एलिजिबल फॉर लीव। तो आप पहले प्रोबेशन को खत्म करो, उसके बाद आप लीव के लिए अप्लाई करो। और किसी का कोई क्वेश्चन? सर कौन कौन सी सोर्सेज हो सकती हैं किस चीज के लिए? जैसे आपने बताया CSIR, ICSR या मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से मिल सकता है। वैसे करके बहुत सारे, जैसे ICMR है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जो मेडिकल अगर कोई हेल्थ इश्यूज के ऊपर आप काम करोगे ICMR अप्लाई कर सकते हो। एग्रीकल्चर से रिसर्च करोगे, एग्रीकल्चर रिलेटेड करोगे, ICAR होता है। कल्चरल स्टडीज के ऊपर करोगे ICCR होता है। हिस्ट्री के ऊपर करोगे ICHR होता है। अगर आप जो है फिलोसफी के ऊपर करोगे तो ICPR होता है। ऐसे करके बहुत सारे फंडिंग काउंसिल्स है, तो आप किसी में भी अप्लाई कर सकते हो। इंडिविजुअली इनको खोल के चेक करना पड़ेगा। हाँ, दोबारा बताएं दीपा दोबारा। हाँ सर, इंडिविजुअली इनको ओपन करके देखना पड़ेगा या कॉमन कोई प्लेटफॉर्म है जहाँ पे एक बार आ जाएगा? नहीं, कॉमन कोई नहीं है। आप उनका इंडिविजुअल वेबसाइट को विजिट करो, तो वो सारे मिल जाएगा इन्फॉर्मेशन। यस, आप दूसरा कुछ पूछ रहे थे, बताइए। पॉलिटिकल साइंस के लिए था, बताइए क्वेश्चन बताइए। हाउ टू गेट इंटरनेशनल फंडिंग सर? फॉर व्हाट? फॉर रिसर्च और पोस्ट डॉक्टर। मैंने आपको बताया था, अभी आपको बताया कि अगर आप बाहर रिसर्च करना चाहते हैं तो उसके लिए फॉरेन फंडिंग काउंसिल से, तो आप उनको अप्लाई करके उनकी स्कॉलरशिप लेके जाइए। फ्रॉम द फॉरेन कंट्रीज, नॉट फ्रॉम इंडिया। मैं तो आपको वही कह रहा हूँ ना, आप समझ नहीं रहे हो। ग्रांट्स फ्रॉम फॉरेन कंट्री, नॉट फ्रॉम इंडिया। ग्रांट फॉर व्हाट? फॉर डूइंग रिसर्च और डूइंग रिसर्च प्रोजेक्ट? पोस्ट डॉक्टरल और प्रोजेक्ट। मैंने आपको बता चुका हूँ कि अगर आप यूएसए जाओगे पीडीएफ करने के लिए तो आपको फुलब्राइट फेलोशिप के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप यूके जाओगे या कॉमनवेल्थ कंट्री जाओगे तो आपको उसके लिए कॉमनवेल्थ फेलोशिप अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप ऑस्ट्रेलिया जाओगे तो आपको उसके लिए एंडेवर फेलोशिप, ये बता चुका हूँ ऑलरेडी। तो ये सारे फॉरेन फेलोशिप है जो आप अप्लाई करके पीडीएफ के लिए, रिसर्च के लिए जा सकते हो। सर एनी वेबसाइट फॉर इट? नहीं, आप सिंपल गूगल में कॉमनवेल्थ फाउंडेशन लिखोगे, फट से आ जाएगा। तो इसमें कोई इन्फॉर्मेशन की जरूरत नहीं। आप गूगल में लिखो कॉमनवेल्थ फाउंडेशन, फट से आ जाएगा। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, अभी हम लोग 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं। उसके बाद जो सेकेंड लेक्चर होगा दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज कई जगह पे आप अप्लाई करते हो, आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि जो सेकेंड लेक्चर का जो हाउ टू राइट ए सक्सेसफुल रिसर्च प्रपोजल, वो आप सब सिंसियरली सीरियसली सुनो और उसको अप्लाई करो। उसके बाद अगर नहीं होगा तो मेरे से बात करो, ठीक है? ओके सर, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू वेरी मच।
10:45 मिलते हैं हम लोग दोबारा 10:45। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir.